رمزیش تیری نور آصف کی 87 پارٹ 2۔ سرحان اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا تو درخشاں کھانے کے ہاتھ میں پکڑے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ لالا بھابھی نے کھانا نہیں کھایا، انہوں نے واپس بھجوا دیا ہے، ان کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے وہ کچھ نہیں کھا رہا۔ درخشاں نے زران کو دیکھتے بتایا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ زران سنجیدگی سے کہتا کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو چکا تھا۔ زران کے کمرے میں داخل ہونے پر ابرش جو بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی، ستمگر کی خوشبو محسوس کرتے بند آنکھوں سے استہزائیہ مسکرا گئی تھی۔ وہ 2 دن بعد کمرے میں آیا تھا، اسے اس کی ضرورت تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح پھر سے اس کے پاس نہیں تھا۔ اور یہ دکھ دینے والا بھی تو یہی ستمگر تھا۔ ابرش اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے پھر سے مسکرا گئی تھی، مگر بند پلکوں کی پاڑ سے بہت سے آنسو نکلتے آرس کو بھگونے لگے۔ زران لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، جو بدحال سی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، بکھرے بال، لرزتا بدن۔ رونے کی وجہ سے آرس گلابی ہو رہے تھے، مگر رنگت میں زردیاں سی گھلی تھی۔ آرس پر بہتے آنسو اس کی گردن کو بھگو رہے تھے، وہ درد کی تفسیر لگ رہی تھی۔ یہ اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے انہی کپڑوں میں تھا، آنکھیں سرخ اور متوم تھیں۔ سامنے بیٹھا نازک وجود کم سے کم آنسو تو بہا سکتا تھا۔ وہ اپنے غم پر آنسو بھی نہیں کسی کے سامنے بہا سکتا تھا۔ زران نے اسے دیکھتے اپنی گھنی پیٹ پر بے چینی سے ہاتھ پھیرا تھا۔ جب سے اس کی نکاح میں آئی تھی ایسے ہی اسے روتے دیکھ رہا تھا۔ ابرش، زران نے گہرا سانس بھرتے بہت نرمی سے اسے پکارا، مگر اس کی اپنی آواز بھی زلزلوں کی زد میں تھی۔ دونوں کا غم ایک ہی جیسا تو تھا۔ زران کے پکارنے پر بھی ابرش کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، وہ یوں ہی آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ زران اس کی خاموشی پر کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ ابرش، جو کچھ ہوا وہ شاید ایسے ہی ہونا تھا، تمہیں سب کچھ بھلانا ہوگا، زران نے آہستگی سے کہا۔ نے اپنی پچھلی گردن رب کی، یہ غم تو وہ خود نہیں بھلا پا رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیسے بھلاتی۔ کیا کیا بھلاؤں گی، اپنے بچے کو کھونے کا غم، تمہاری بے وفائی، یا پھر تمہارے مارے ہوئے تھپڑ، کیا کیا بھلاؤں گی۔ ابرش آنکھیں کھولتے زخمی سے لہجے میں بولی، میں نے تمہارے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی ابرش، نہ کبھی کرنے کا سوچا ہے۔ ذرا نے اس کے بہتے آنسوں کو بغور دیکھتے لب بھینچے کہا، تم بے وفائی کر چکے ہو زران، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تمہارا مجھے ہسپتال میں چھوڑ کر جانا اور 2 دن بعد کمرے میں آنا ثابت کرتا ہے تمہیں صرف اپنے بچے کی فکر ہے تھی۔ میں مروں یا جیوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میری کسی تکلیف سے، تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا، تم ایک خود غرض انسان ہو، تمہیں مجھ سے محبت بالکل نہیں ہے، تم وقتی اٹریکشن کو محبت سمجھ بیٹھے اور تمہاری ضد اٹریکشن کو میں بھگت رہی ہوں۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی زران، میرے بچے کو مار دیا، تم اپنے ہی بچے کے قاتل ہو۔ ابرش پھیکے لہجے میں بولتے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ ابرش کی باتوں پر وہ اپنا نچلا لب سختی سے دانتوں کے نیچے کچل گیا تھا، اس لیے وہ 2 دن سے کمرے میں نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بچے کی موت کے قاتل جیسے لفظ وہ خود کے لیے نہیں سن سکتا تھا، ابھی بھی یہ لفظ بہت اذیت دے گیا تھا اور درد کی انتہا پہ تھا۔
उसे भी सामने बैठे नाजुक वजूद की ज़रूरत थी। आज वो उसकी पनाहों में सब कुछ भूलना चाहता था। अब्रिश मेरी बात सुनो। ज़रान उसकी तरफ बढ़ा। मेरे करीब मत आना ज़रान, तुम मेरे बच्चे, मेरी खुशियों के कातिल हो। अब्रिश हिज़ियानी चीखी थी। सामने खड़े सितमगर को देखते सारे जख्म हरे हो गए थे। किस तरह वो दर्द से कराहते उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो यकीन नहीं कर रहा था। और पलवशा के लफ्ज़ भी तो याद आए थे। बड़ा इंसान कातिल ही नहीं बेवफा भी था। अपने बच्चे का कत्ल माफ़ भी कर देती तो बेवफाई कैसे माफ़ करती, जिसने उसकी रूह में भी जख्म कर दिए थे। अब्रिश ने कर्ब से सिसकी ली थी। तुम कातिल हो। अब्रिश चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। बच्चे की मौत का जिम्मेदार सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ, तुम भी हो। तुम अगर इस बच्चे को मारने की बात ना करती तो शायद मैं कभी ऐसा ना सोचता, मगर तुमने अपनी जिद और अना में इस बच्चे को मारने की बात की और बार बार की। आज तुम उस बच्चे के लिए रो रही हो। इसी बच्चे इसी बच्चे को मारने के लिए तुमने गोलियां खाने की कोशिश की थी। अगर उस दिन में बर वक्त ना आता तो तुम इस बच्चे को मार चुकी होती। जरान अब्रिश की बातों पर जख्मों से चूर लहजे में बुलबुलाया था। अब्रिश जरान की बात सुनते एक ही जस्त में सोफे से ज़रान के मुकाबिल होती उसका गिरबान जकड़ गई। मिस्टर ज़रान खानज़ादा, तुम खुद गर्ज ही नहीं बेहस ज़ालिम सफाक अजड गवार हो। खुदा ने जितना खूबसूरत तुम्हें चेहरा अता किया है, दिल उतना ही बदसूरत दिया है। तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। मैंने इस बच्चे को मारने का सोचा था, मगर मारा तो नहीं था। इस बच्चे को मार चुके हो, तुम कातिल हो। कातिल ना सिर्फ अपने बच्चे की मरे, मेरे दिल के भी कातिल हो। अब्रिश उसका गिरबान पकड़े रोते हुए चिल्लाई, अब्रिश बिहेव योर सेल्फ। जरा ने अपना गिरबान उसके हाथों से छुड़वाते उसे झटका था। वो बुरी तरह दीवार के साथ जा लगी थी। नाजुक होती हालत की वजह से उसे जोरदार चक्कर आया था। अपने चकराते सर को अब्रिश ने दोनों हाथों से चकरा। जरान जो मुठ्ठियां पीछे गहरे सांस भरता अपनी इश्तियाल पर काबू पा रहा था, उसे यूं चकराते देखकर उसकी तरफ बेताबी से बढ़ा। रुक जाओ मिस्टर खानजादा। अब्रिश ने दीवार के साथ टीक लगाए हाथ के इशारे से जरान को खुद की तरफ बढ़ने से रोका था। वहीं पर रुक जाओ, मेरी करीब मत आना। अब्रिश ने दीवार के साथ टीक लगाए सिसकते हुए कहा। जरान उसे बेबसी से देख कर रह गया। उसकी नाजुक होती हालत महसूस करते हुए उसकी तरफ बढ़ा ही नहीं था। वो गुस्से से हाँफ रही थी। तुम्हें पता है मिस्टर खानजादा, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अब्रिश ने सिसकते हुए सुख चेहरे के साथ सवाल किया। तुम्हें कैसे पता होगा, जिसने कभी मोहब्बत की ही ना हो। उसे कैसे पता हो सकता है। अब्रिश अपने इस सवाल पर इस्तज़ाइया मुस्कुराई थी। जरा ने लब भींचते अपनी कनपटी सहलाई। उसकी ऐसी हालत और सवाल बर्दाश्त नहीं हुआ था। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, फिर भी मैं इस गम में नहीं रो रही, बल्कि मैं तुम्हारी बेवफाई के गम में रो रही हूँ। कर सकती तो मैं किसी के साथ सारी जिंदगी इस हवेली में कैद करके रखते उफ ना करती। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो मैं तुम्हारी बेवफाई माफ करूंगी, तो तुम्हारी ये सोच गलत है। तुम दूसरी शादी करोगे और मैं तुम्हें माफ करूंगी, तो तुम गलत हो। सोचते हो मिस्टर खान, ज्यादा नहीं कर रहा, मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा, मैं कोई बेवफाई। जरान उसकी बात काटते हलक के बल चीखा था। चलाओ मत मेरे सामने मिस्टर खान ज्यादा। तुम्हारे चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा, और अपनी मोहरे से तुम वादा कर चुके हो दूसरी शादी का। और तुम्हारे नजदीक बेवफाई क्या होती है? अब्रिश भी जवाबन चीखते हुए सवाल दागा।
अब्रिश, हमारे रिश्ते को आज इस नहज तक पहुँचाने वाला तुम्हारा शक है। मुझ पे यकीन ना करना है। ज़रा ने उसके यूँ चीखने पर लब भींचे कहा, यकीन कैसे करूँ? तुमने मुझ पर यकीन किया जब मैं हॉस्पिटल में कह रही थी मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा। अब्रिश ने रोते हुए सवाल किया। मैंने क्यों यकीन नहीं किया जानते हो क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम बेयकीन थी। उसी बेयकीनी की वजह से तुम्हें वो पेन उठा। हमारे बच्चे की हालत अनस्टेबल हुई जब मैं तुम्हें यकीन दिला चुका था, कसम खा चुका था कि पलोशा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं तो फिर क्यों? कसम तो तुमने अपनी मोरे के सामने भी खाई थी पलोशा से शादी करने की। अबरीश उसकी बात काटते इस्तेज़ाइया लहजे में बोली, अबरीश पछताओगी तुम एक दिन, इसी बेयकीनी की वजह से तुम हमारे रिश्ते को खो दोगे। ज़रा ने मुट्ठियां भींचे कहा, ज़रा ने मुठ्ठियां भींची जब से कहा। अबरीश की बातों पर उसका मीटर शॉर्ट हो रहा था। उसकी हालत के पेश नज़र पर मुश्किल ही खुद पर काबू पाए हुए था। क्या कहा? ये रिश्ता खो दूंगी यानी तुम्हें खो दूंगी? मैं तुम्हें खो चुकी हूँ मिस्टर खानजादा। तुम मेरे नहीं, तुम उस पलविशा के हो। तुम उसी दिन हो चुके थे उसके जिस दिन तुमने अपनी मोहरे से वादा किया था। अबरिश जख्मी सा बोली थी। उफ, जरा ने अपनी जबड़े भींचती अपनी सुर्ख आंखें मसली। उसका अपने मोहरे से झूठा वादा करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती थी जिसकी सजा वो अब तक भुगत रहा था। जरा ने लब पीछे उसे देखा। जरान कुछ पहले से देखता रहा। वो दीवार से टेक लगाए बुरी तरह रो रही थी। रेड फ्रॉक में मलबूस थी, उलझे से बिखरे बाल, गुलाबी आंखें रोने की वजह से गुलाबी हुए आरिस। उसका कुंदन सा नाजुक सरापा पूरी तरह लरस रहा था। रोते हुए शिकवा की ना निगाहों से देख रही थी। जरान बेबसी से उसे देख कर रह गया। जरान गहरा सांस लेते उसकी तरफ बढ़ा। पास मत मेरे आना। अबरिश ने सिसकी बरते उसे आगे बढ़ने से रोका था। एक ही जज्बे अपने सीने में भींच गया। छोड़ो मुझे मिस्टर खानजादा। अबरीश पूरी तरह उसके हिसार में मछली। जरान और मजबूती से उसे अपने सीने में भींच गया था। अबरीश ने उसकी मजबूत पनाहों में मचलते हुए उसके अरे रिलैक्स मेरी जान। जरान ने उसकी गिद्ध हिसार मजीद मजबूत करते उसके बालों पर अपने लब नरमी से रखे। खबरदार मुझे जान कहा, जाकर इस पलवशा से कहो जो सच में तुम्हारी जान है। अबरीश उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी जरान की सुर्ख नरमा ज़दा आंखों में देखते बोली, रोते हुए बोली, जो जाने उसी को कहूँगा। ज़रा ने नम आवाज़ में कहते अबरीश की नाजुक कमर के गिर्द अपना हिसार मजबूत किया था। एक सुकून सा उसे अपने दिल में उतरता महसूस हुआ। मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ ज़रान। अबरीश उसके सीने से लिपटे शिद्दत से रो दी थी। तक उसके सीने से लगी रोती रही। ज़रान नरमी से उसकी कमर पर अपना हाथ फेर रहा था। वो रोते रोते थक गई तो ज़रान ने उसे खुद से अलग करते उसके आरिस पर बहते आंसू नरमी से अपनी उंगलियों के पोरे से चुनने लगा। अब वो खामोशी से उसे देख रही थी। ज़रान उसे मुस्कुरा गया। उसका चेहरा नरमी से दोनों हाथों में थाम गया था। उसके चेहरे को थामे उसकी जबों पर झुकते उसकी सांसें नरमी से घूंट गया। ब्रिज उसके लम्स पर साकित हुई थी। एक हाथ उसकी कमर में डाले, दूसरे हाथ से उसके बालों को जकड़े हुए उसके निचले लब को अपने लबों में दबाए खींच गया था। अबरिश उसकी बाहों में बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। ऐसे ही हमेशा उसकी जादूगरी से मुजस्सम हो जाती थी। आज भी हुई थी। उसकी मर्दाना खुशबू जिसमें उसका स्ट्रॉन्ग सेंट भी शामिल था और जैसे मदहोश हुई थी। सरान कहा था, अब उसकी पुश्त को सहलाता बहुत नरमी से उसकी कमर पर हाथ फेर रहा था। बहुत नरमी से उसकी धड़कनों को छू रहा था। उसकी लबों को आज़ाद करता उसकी गर्दन पर आया जहाँ उसने अपने सिलकते लब रखे थे। बहुत नरमी से उसकी गर्दन को छू रहा था। अब उसके दहकते लब
उसकी गर्दन से नीचे उसका हाथ उसकी फ्रॉक के अंदर से उसके पेट को छूता ऊपर की जानिब बढ़ रहा था। ज़रान की ठंडी उँगलियों को उसकी धड़कनों को छूने की दे रही थी, वो करंट खाकर पीछे हुई थी। उसके हाथों को पूरी तरह झटकते उसे खुद से दूर किया। ज़रान नरमी से उसकी कमर में हाथ डालते उसे फिर से अपने करीब कर गया था। उसके आंखों से बहते आंसू अपने अंगूठे के पोरों से साफ किए। मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी तुम्हें ज़रान। अब्रिश ने उसकी गर्म नर्म जुदाई लम्स पर हिचकियों के दरमियान कहा। वो उसकी लम्स पर पिघल रही थी। मैं तुमसे सारी उम्र माफ़ी मांगता रहूँगा, फिर भी नहीं करोगी। ज़रान ने उसके आरिस पर अपने लब नरमी से रख अब्रिश उसे दूर झटकते पीछे हुई थी। अब तुम्हारे किसी झूठ फ्रेब में नहीं आऊंगी। तुम अपनी बात और अपने लम्ब से मुझे हमेशा पिघला देते हो, मगर अब नहीं। अब्रिश ने अंगद शहादत की उंगली उठाई, हिचकियों के दरमियान कहा। अब्रिश, सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। तुम रो कर चीख चलाकर अपने दिल का ख्याल बयान कर सकती हो। मुझे देखो मैं क्या करूं, किससे अपना दुख बयान करूं। मैंने अपने बच्चे को मार दिया, ये कसम मुझे चैन नहीं लेने दे रही। तुम इतनी तकलीफ में थी, मैंने तुम्हें मजीद तकलीफ पहुंचाई। मत करो ऐसे। ज़रान की आंखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख हुई थी। ये सच है ज़रान, तुमने मुझे तकलीफ दी। जानते हो किस तरह मैं ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंची थी, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम हमेशा से इस तरह करते हो ज़रान, हमेशा इस तरह। अब्रिश ने रोते हुए शिकवा किया। तुमने कभी सोचा इस तरह क्यों करता हूँ? तुम्हारे बच्चे को मारने की बात ना करती, क्या कभी मैं ऐसा सोच सकता था? अगर तुम हमारे निकाह से ना भागी होती, मैं कभी क्या कभी ऐसा सोचता? तुमने हॉस्पिटल ही जाना था तो मोरे को बताती। अब्रिश, ये क्या तरीका था अकेले गाड़ी लेकर निकल जाना? तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे कितने दुश्मन हैं, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। संजीदगी से कहा, किसको बताती? तुम्हारे मोरे को, जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, या फिर तुम्हारी पलविशा को, जिसने हमारा बच्चा मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी? अब्रिश गुस्से से चीखी। उसकी चीखने पर जरान का पारा फिर से हाई हुआ था। अब्रिश, मैं उसे क्लियर कर चुका हूँ कि मैं उसे किसी सूरत शादी नहीं करूंगा, और ये बात समझ भी चुकी है। और मोरे और तुम्हें भी क्लियर कर चुका हूँ, मैं किसी सूरत पलविशा से शादी नहीं करूंगा। फिर तुम उसके कमरे में क्यों गई? उस पर वो मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाए? जरा ने उसकी एक ही तकरार पर चुपते लहजे में पूछा। ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया ज़रान? अब्रिश ने गहरे सांस लेते ज़रान का गिरबान फिर से जकड़ा था। फिर तुम कहते हो तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। कब की बात तुमने उससे कहाँ बात हुई तुम्हारी उससे? अब्रिश उसका गिरबान जकड़े हिस्यानी चीखी थी। कमरे में आया तो ये सब कुछ उससे पलविशा ने कहा। उसका पूरा बदन शोलों में गिरा था। पलविशा की हर बात पर जैसे से यकीन आ रहा था। अब्रिश, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। फॉर गॉड सेक समझने की कोशिश करो। उसने ये सब कुछ मुझे फ़ोन पर कहा। हाँ दीदी, जब तुम गाड़ी लेकर निकली थी, उसके अलावा मेरी उससे कहीं बात नहीं हुई। सरा ने अपना गिरबान चढ़वाते हुए झुंझुलाते कहा। तुम मुझसे फ़ोन पर भी बात करते हो? अब्रिश की भीगी आवाज़ आहिस्ता हुई। हाथ फेरा था। अब्रिश, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरा पलविशा से कोई लिंक नहीं है, और ना मैं उससे कभी शादी करूंगा। आइंदा अगर तुमने पलविशा को लेकर मुझसे कोई भी सवाल किया, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए बी केयरफुल। आदत की उंगली उठाई, तंबी की थी, फिर से स्टील पथराई हालत में खड़ी थी। अब वो पछता रहा था, उसने पलविशा का नाम ही क्यों लिया। क्या करोगे मिस्टर खानजादा? मुझ पर हाथ उठाओगे या फिर अपनी मोहरे के वादे को सच करके दिखाओगे?
बावन रोते हुए कहा। ज़रान उसकी बात पर लब भींचे खामोश हो गया था। उसे जितना समझा रहा था, समझने की बजाय मज़ीद बिगड़ रही थी। तुम रेस्ट करो, तुम्हें इस वक़्त रेस्ट की ज़रूरत है। ज़रान लब भींचे संजीदगी से कहते दरवाज़े की जानिब बढ़ा। कहाँ जा रहे हो तुम? उस पलविशा के पास जा रहे हो? अब्रिश ने चीखते हुए कहा। खुदकुशी करने जा रहा हूँ। अगर बच गया तो तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, उसी के पास जाऊँगा। शायद उसके पास सुकून मिल जाए। ज़रान की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। चीखता हुआ बोला था और धार से दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गया। उसके अल्फाज सुनते साकित होती दीवार के साथ टेक लगाई। पलविशा की बातें, ज़रान की मोरे की रिकॉर्डिंग, सान का अपनी मोरे से कसम खाना, अस्पताल में ज़रान का धक्का देना, सब कुछ उसकी आँखों के आगे गूंजता उसकी नज़रों में घूम रहा था। अब्रिश ने अपने पेट पर हाथ रखा। अपनी कोख के खाली होने के एहसास से वो तड़प उठी थी। वो कैसे इस दुश्मन जान को बताती, उसे ये बच्चा अपनी जान से बढ़कर था। जिस तरह वो सितमगर था जो किसी और की बाहों में सुकून का मतलाशी था। के साथ टेक लगाए नीचे बैठती चलेगी। मामा आए, अनाया वो कमरे की छत को देखते उन्हें सबको पुकार बैठी। आज बहुत दिनों बाद उसे सबकी याद आई। उसे कमरे से बाहर आया तो पलविशा को दरवाजे के पास खड़ा देखकर जरान के माथे पर बल पड़े थे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जरान ने गुस्से से चुपते लहजे में पूछा। उसे दुनिया में इसी चेहरे से सबसे ज्यादा नफरत थी जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। जरान ये दूध लाई थी अब्रिश के लिए। उसने खाना नहीं कहा तो पप्पू ने ये दूध का गिलास अब्रिश के लिए भेजा है। हाथ में पकड़े दूध के गिलास की तरफ इशारा किया। अब्रिश को किसी चीज की भी जरूरत हुई तो दरख्शां है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और आइंदा मुझे तुम किसी भी सूरत अब्रिश के करीब भी भटकती नजर ना आओ। जरान ने सख्ती से कहा। सॉरी ज़रान, अब्रिश मेरी यहाँ मौजूदगी से डिस्टर्ब है। तुम ऐसा करो, जब तक मोरे बाबा वापस नहीं आ जाते थे तब तक मुझे किसी हॉस्पिटल में रिहाइश दिलवा दो प्लीज़। पलविशा ने भीगे लहजे में कहा। पलविशा मैं आगे बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे मज़ीद परेशान मत करो। जहाँ तक यहाँ से जाने की बात है, तुम्हारे मोरे बाबा आगे मैं उसी लम्हे तुम्हें यहाँ से रवाना करूँगा, इसलिए जब तक यहाँ हो मुझसे दूर दूर रहो। ज़रान एक एक लफ्ज़ चबाते वहाँ से चला गया था। ज़रान तेज़ तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ उतरते नीचे आया। बोलो, उसको मोबाइल फ़ोन चंगाड़ा। हाँ बोलो रफ़्ज़ान। ज़रा ने फ़ोन कान से लगाए कहा। खान साहब, अनाया का पता चल गया है। रमज़ान की आवाज़ गूंजी थी। क्या कह रहे हो तुम? ज़रा ने फ़ोन पर गिरफ्त मजबूत करते हुए बेयकीनी से बहज़ाद खान की एक एक्ट पर नज़र रखी हुई थी। अनाया बहज़ाद खान की हवेली में है, मगर खान साहब अच्छी खबर ये है बहज़ाद खान किसी सियासी रैली में शरीक होने के लिए इस्लामाबाद गया है। इस वक्त उसकी हवेली में गिने चुने गार्ड्स हैं। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता अनाया को छुड़वाने का। आप जल्दी से आ जाएं। रमज़ान उजरत भरी अंदाज में फ़ोन बोलता फ़ोन बंद कर चुका था। ज़रान फ़ोन अपनी पॉकेट में डालता तेज़ी से हवेली से बाहर निकल गया।
आबेसात की हवेली पहुंचा था। इस वक्त हवेली के गेट पर 2 ही गार्ड्स तैनात थे। ज़रान खानज़ादा गार्ड्स की अच्छी खासी तादाद लेकर हवेली पहुंचा था। तमाम गार्ड्स ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया था। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे लंबे हथियार फेंक दिए थे। लोग सिर्फ 2 थे, उन्हें चारों तरफ से ज़रान खानज़ादा के गार्ड्स ने अपने हिसार में ले लिया था। उनसे बंदूकें लेकर उनके हाथ-पैर बाँध कर उन्हें गाड़ी में इनसे बंदूकें लेकर इनके हाथ-पैर बाँध कर इन्हें गाड़ी में डालो। बेसात खान तक पहुँचने में ये हमारी काफ़ी मदद करेंगे। लहजे में हुक्म देता गेट से अंदर दाखिल हो गया। गार्ड्स भी ज़रान के हमरा अंदर दाखिल हुए थे। ज़रान तेज़ी से दाखिली दरवाज़े की तरफ बढ़ा। दाखिली दरवाज़े पर ज़रान ने अपनी पिस्टल से 2-3 फायर किए थे। लॉक अपने आप खुल गया था। कदमों की रफ्तार से अंदर दाखिल हुआ। रमज़ान और बाकी गार्ड भी उसके पीछे अंदर दाखिल हुए थे। रमज़ान ने एक कमरा छान मारो, जल्दी करो सब। ज़रा ने ऊँची आवाज़ में दहाड़ते हुए हुक्म दिया था। ये हवेली बहुत बड़ी थी, कमरों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। ज़रान सीढ़ियाँ उतरता हवेली के बेसमेंट में दाखिल हुआ। बेसमेंट के सारे कमरे खुले थे, एक ही कमरा लॉक था जिसके दरवाज़े पर बड़ा-सा ताला लगा था। ज़रान ने उस ताले पर यके बाद दीगरे फायर किए। ताला खुलने पर ज़रान दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर घुटनों में मुँह छुपाए सिसकते वजूद को देखते उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ा था। अनाया! ज़रान ने उसे नरमी से पुकारा। अनाया ने घुटनों से सर उठाए ज़रान को देखा, उसकी आँखें बेयकीनी से फैली थीं। भागती हुई ज़रान के सीने से लगी। ज़रान भाई, वो उसके सीने से लगी शिद्दत से रो दी। ज़रान भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप यहाँ पर हैं। अनाया हिचकियों से बोली। पूरे 4 माह बाद किसी अपने को देख रही थी वरना उसकी ज़रूरत का सामान के हाथ पहुँचा दिया जाता था, वो भी दरवाज़े पर रखकर दरवाज़ा बाहर से बंद करके चली जाती थी। आज गोलियों की आवाज़ सुनते बुरी तरह खौफ़ज़दा हुई थी। अब अपने सामने ज़रान को देखकर उसकी आँखें बेयकीन थीं। अलग करते उसके चेहरे को बगौर देखा, वो बहुत कमज़ोर लग रही थी, चेहरा बिल्कुल सर था। उस वक़्त शलवार कमीज़ में मलबूस थी। ज़रा ने उसकी दुपट्टे की तलाश में नज़रें दौड़ाईं तो वो बेड पर पड़ा नज़र आया था। मैं आगे बढ़ते उसका दुपट्टा बेड से उठाते अच्छी तरह उसके गिर्द फैलाया। अनाया ने भी वो दुपट्टा अच्छी तरह अपने गिर्द और कड़प नज़रें झुका ली थी। जब उसे अगवा किया था, वो पैंट शर्ट में मलबूस थी, ये तो बाद में उसकी ज़रूरत के सामान के साथ कुछ कपड़े भी उसे दिए गए थे। जो दुपट्टा शलवार कमीज़ पर मुश्तमिल थे। अनाया बेटा तुम ठीक हो? तुम्हें इस पे एहसास या फिर किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मेरा मतलब तुम्हें कोई नुकसान मतलब मारा तो नहीं? ज़रान ने चाहते भी वाज़ेह अल्फ़ाज़ में सब पूछ नहीं सकता था जो पूछना चाहता था बेज़ात खैस जैसे इंसान से। का दिल लरज़ रहा था, 14 साल की थी वो। ज़रा ने पूछते ही अपनी निगाहें फेरी। नहीं ज़रान भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बेज़ाद अंकल ने मुझसे कुछ कहा बेज़ाद अंकल ने मुझसे कहा था वो मेरे साथ दरिंदों से बढ़कर सलूक करना चाहता था। मगर अब शापी की वज़ह से वो ऐसा नहीं कर सकता। जिसने मेरी इज़्ज़त और मेरी जान बख्श दी है। अनाया ने टूटे लफ्ज़ों से नज़रें झुकाए कहा। वो 14 साल की थी, मगर ज़रान की बात का मतलब समझ चुकी थी। यहाँ रहकर उसे अपनी जान से बढ़कर इज़्ज़त का डर, खौफ़ ज़्यादा था। वो रातों को सो भी नहीं सकती थी। हाँ ने अब्रिश का नाम दोहराते ना समझी से उसकी तरफ देखा था, मगर आंखें पल में सुर्ख हुई थी। बेज़ाद खान जैसी कमीनी फितरत इंसान ने अब्रिश की वजह से अनाया को क्यों छोड़ा उसे समझ नहीं आया था। उसी असना में रमज़ान कमरे में दाखिल हुआ। अनाया को किसी सेफ जगह पर पहुंचाओ जहां बेज़ाद खान की पहुंच ना हो सके। जरा ने रमज़ान को देखते हुक्म दिया। खान साहब, अनाया को अपने गाँव ले जाऊं? फिलहाल इससे सेफ जगह कोई नहीं है। रमज़ान ने मुअद्दब लहजे में पूछ
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा रमज़ान। बेज़ाद खान ने इतनी आसानी से नायब को हमारे हाथ कैसे लगने दिया? बेज़ाद खान के पास गार्ड्स की एक फ़ौज है, मगर आज गेट पर सिर्फ़ 2 गार्ड तैनात हैं। उन्होंने बिना किसी मज़ाहमत के हथियार डाल दिए। कुछ तो गड़बड़ है। सहारनपुर सोच अंदाज़ में बोला। को हमारे हवाले किया है। अब मुझे लगता है वो अनाया के ज़रिए अहल और ज़रदार तक पहुँचना चाहता है। अनाया को लेकर हवेली पहुँचे और हवेली के गिर्द चारों तरफ गार्ड्स भी तैनात करो, तो अपने साथ भी गार्ड रखना। ज़रा संजीदगी से हदायत देता कमरे से बाहर निकल गया। कमरों में ऊपर बलाई कमरे में दाखिल हुआ। ज़रान तेज़ी से कमरे से बाहर आया था और ज़रान कमरे को देखते ही ज़रान बहुत सारे कमरों की तरफ बढ़ते एक कमरे की तरफ बढ़ा। ज़रान कमरे को देखते ही समझ गया था ये कमरा बेसात खान का है। कमरे की अलमारी की जानिब बढ़ा था मगर यकदम उसकी कदम ज़मीन में जकड़े गई थी। रंग तांबे की मानिंद सुर्ख हुआ था, आँखों में खून की लाली के साथ बेयकीनी भी थी। ब्रिज के लगे पोस्टर को देखकर उसके खून में आग भड़क उठी थी। वो बेयकीनी से वो पोस्टर देख रहा था जहाँ वो दुल्हन के लिबास में खुले बालों के साथ खड़ी थी, इसी लिबास में जिसमें उसकी निगाह से भागी थी। में जिसमें उसे देखते ही ज़रा ने उससे कहा था तुम आज औरतों के सामने भी नहीं जाओगी। ज़रा ने बेयकीनी से कमरे के चारों तरफ नजरें दौड़ाई जहाँ हर तरफ अब्रिश के पोस्टर लगे थे दुल्हन के। उसमें भी मुख्तलिफ पोस्टर थे जिसमें वो नम आंखों से देखते खड़ी थी। नेट का दुपट्टा अपनी गिर्द ओढ़े सिल्की बाल कमर पर लहराते उसकी मुख्तलिफ पोस्ट थे जिसमें उसके बदन की तमाम रनाइयाँ ज़ाहिर थी। यहाँ तक कि उसके पिछले डीप गले की बैकलेस भी नमाया थी जिस पर उसका स्याह तिल फोटो ने कैप्चर किया गया था। ज़रा ने गहरी सांस लेते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े थे। इस कमरे की दीवारें धड़ाधड़ जैसे उस पर गिर रही थी। पूरे बदन में कोयले दहक रहे थे। उसे लग रहा था जैसे खून भड़कता लावे की तरह उबलता बाहर आ जाएगा। तुम आज घूंघट करो कि तुम पर किसी औरत की भी नज़र पड़े मुझे गवारा नहीं। अपनी लफ्ज़ उसे अपनी समायतों में सुनाई दिए थे। ज़रा ने अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोले थे। दूसरे ही लम्हे ज़रान बार मुट्ठियों में जकड़े चलाया था। जिस औरत पर किसी औरत की नज़र गवारा नहीं उसकी तस्वीरें आज किसी बेडरूम में सजी थी। वो पागल हुआ था। अनाया की बात का मतलब अब समझ आया था। बीवी का आशिक था। ज़रा ने आगे बढ़ते एक-एक करते हुए पोस्टर फाड़ दिए थे। चैन कहीं नहीं आया तो उसने अपना सीना मसलते जेब से लाइटर निकालते तमाम पोस्टर जलाए। पोस्टर में भड़कती आग उसे ठंडा नहीं कर सकी थी। से भागकर अब्रिश की बेज़ाद खान से मुलाकात हुई थी। उसे क्यों पता नहीं चल सकता वो कब मिली और बेज़ाद खान क्या तभी उसकी बीवी का दीवाना हुआ था। ये सवाल उसके अंदर आग लगाए हुए थे। ज़रा ने आगे बढ़ते कमरे की एक-एक चीज़ उठाकर फेंक दी। साइड टेबल उलट दी। कमरे शीशे की मेज़ उठाकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मारी थी। हर तरफ काँच बिखरा था। मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं बेज़ाद खान, तुम्हारे चीथड़े करके मैं तुम्हारे भी पालतू कुत्तों को खिलाऊँगा। मेरी बीवी, मेरी अब्रिश पर नज़र रखी तुमने। छोड़ूँगा नहीं, ज़रा ने चीखते फैंसी मिरर वॉल में अपना हाथ मारा था। शीशे की किरचियाँ उसके हाथ पे पिवस्त हुई थी। खून बल-बल करता आँख के शोलों में गिरा था।
ज़रान खानज़ादा का फ़ोन कब से बज रहा था मगर उसे अपना होश नहीं था। अपनी बीवी की तस्वीरें यहाँ देखकर वो मर रहा था। आकर कान से लगाया। मुसलसल बजते फ़ोन की आवाज़ सुनते ज़रा ने जेब से फ़ोन लगाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ मिलने वाली खबर ने उसके हवास छीन लिए थे। बेज़ाद ज़रा ने चिल्लाते हुए फ़ोन दीवार पर दे मारा था। बर्तन धो रही थी, ढेरों बर्तन थे जिसे धोते-धोते वो हलकान हो चुकी थी। रुक़िया ख़ानम की हवेली आने के बाद आज हवेली में कुरान ख़वानी रखी गई थी। का इंतज़ाम उसकी ज़िम्मेदारी थी। अब ढेरों बर्तन भी उसी के ज़िम्मे डाल दिए गए थे। आज सुबह से उसे चक्कर आ रहे थे, आँखों के आगे बार-बार अंधेरा छा रहा था। मगर वो बेहिस्सपनी काम कर रही थी, बर्तन धो रही थी कि उसके कपड़ों की एक बड़ी-सी गठरी उठाकर किचन में दाखिल हुई। ती गठरी फ़रिश्ते के कदमों में फेंकी। फ़रिश्ते ने नासमझी से ओज़गुल को देखा जो शररवर निगाहों से काफ़ी नफ़रत से उसे घूर रही थी। बर्तन धोने के बाद ये कपड़े भी धो लेना। उसने तनफ़्फ़ुर से हुक्म दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ओज़गुल, मैं ये कल धो दूँगी। फ़रिश्ते आँखी से कहते दोबारा से बर्तन धोने लगी। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को जो ये ड्रामे कर रही हो? ख़ाला को पता चल गया तुमने इनकार किया, हश्र बगाड़ देंगी तुम्हारा। नहीं, मैं कपड़े नहीं धो सकूँगी, हर बार बाहर बारिश भी हो रही है, मैं कल धो दूँगी। फ़रिश्ते ने इस बार भी आस्ते से कहा, तो चक्कर आ रहे हैं तुम्हें? कौन-सा नया तरीका है हैदर ख़ान को फँसाने का? ओज़गुल ने कांटदार लहज़े में कहा। 'हैदर ख़ान से उसकी शादी पक्के होने पर उसका रवैया ओज़गुल से बहुत बुरा हो गया था। पिछले 3 दिनों से उसने रुक़िया ख़ानम ने उसे एक टाँग पर खड़ा कर रखा, छोटे से छोटा काम फ़रिश्ते के सर पर डाल दिया था। हैदर ख़ान मेरा शौहर है, मुझे इसे फँसाने की ज़रूरत नहीं। देने से खुद को रोक ना सकी थी मगर आवाज़ आहिस्ता ही रखी थी। अपनी बात अच्छी तरह जानती थी। हैदर ख़ान रुक़िया ख़ानम से कितनी मोहब्बत करता था। करता है वो पिछले 3 दिनों से बख़ूबी वाक़िफ़ हो चुकी थी। वो इसके लिए एक रवायती शौहर बन चुका था जो सख्ती से उसे बावर करवा चुका था। किसी भी सूरत में कि मोरे को कुछ ना हो और वो उसे इसका हर हक़ूक़ देगा। हवेली में किसी किस्म की बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। दूसरी शादी उसका हक़ है, उसने तो शिकवा भी नहीं किया था मगर उसे उसकी औकात याद दिला चुका था। फ़रिश्ता ने अपनी जलती आँखें मसले तो हाथों में लगा हुआ साबुन 'फ़रिश्ते नलके का बहता पानी अपनी आँखों में डाले जलन को कम करने की कोशिश कर रही थी मगर जलन कम होने की बजाय और बढ़ गई थी। जब शौहर नहीं था तब भी सवात की सड़क पर उसे अपनी मासूमियत और खूबसूरती के जाल में फँसाया था। ये 5 साल कहीं और देख ही नहीं सका और एक 5 साल बरताई हुई औरत को अपने सर का ताज बना लिया। मगर आखिर कब तक देखा? उसका दिल भर गया तुमसे और उसे एहसास हो गया तुम जैसी औरत से वक़्ती तौर पर दिल बहलाया जा सकता है मगर उसे ज़्यादा देर तक अपने दिल की मलका नहीं बनाया जा सकता। लहजे में बोली तो फरिश्ते गहरे सांस लेते शेल्फ को थाम रही थी। चक्कर फिर से आया था। अब उसने चकराते सर को थामा था और तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? चक्कर उन औरतों को आते हैं जो बाँझ नहीं होती। इसलिए हैदर खान सामने मज़लूमियत का ड्रामा मत करना वरना वो हाल करूँगी याद करो कि तुम मौज़ ने उसे चकराते देखकर गुस्से से लफ्ज़ चबाए थे और गुस्से से किचन के दरवाज़े की तरफ बढ़ी। हैदर खान मेरा शौहर है। मैं उसके सामने जो मर्ज़ी करूँ, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली?
पर औज़गुल के कदम से रुके थे, वो गुस्से से उसकी तरफ पलटी थी। "कुछ दिन सब्र कर लो, फ़रिश्ते मैं तुम्हारा सारा गरूर ख़त्म कर दूँगी, वादा करती हूँ तुमसे। हैदर ख़ान को तुम्हारे करीब भी नहीं फटकने दूँगी, तुम जैसी बांझ औरत को दोबारा मुँह नहीं लगाएगा, तुम देख लेना।" हाथ गुस्सा दिला गया था, "ख़ान दूसरी शादी करे, तुमसे ख़रीद नहीं रही, जो वो तुम्हारी हर बात मानेगा। जो तुम्हारा हक़ होगा ख़ान पर, वो मेरा भी होगा और तुम ख़ान को मेरे पास आने से नहीं रोक सकती और ना वो रोकेंगे। उन्होंने वादा किया, वो बराबर की सतह पर मेरे और तुम्हारे हकूक़ आते लबों से भीगे लहजे में कहा, "ओज़ल की बातें उसका दिल हिला रही थी, शोहर बाँट रही थी, यहाँ तक तो ठीक था, उसे मुकम्मल तो किसी को नहीं सौंप सकती थी। हैदर के बगैर तो अब उसकी साँसें भी नहीं आती थी।" किया था, कोई दूसरी शादी नहीं करेगा, कर रहे हैं ना वो दूसरी शादी, इस तरह तुम्हारा कोई हुकूक नहीं निभाएगा। ये जो तुम मुसलसल 3 दिन से कमरे से भीगी ज़ुल्फ़ें लेकर निकल रही हो, जानती हो उसे खुश रख रही हो ताकि वो हमेशा तुम्हारा रहे, मगर अब ये मुमकिन नहीं रहेगा। रिश्ते की आँखें मज़ीद जली थी, वो सच कह रही थी, पिछले 3 दिनों से वह दिन में हैदर ख़ान के मोरे की खिदमत और रात में हैदर ख़ान की खिदमत करती, ताकि उसे कभी ना भूले। औरत के पास होता क्या, अपने जिस्म को थकाते मर्द को खुश रखने की कोशिश करती है। सारी उम्र मर्द को खुश करने में गुज़र जाती है और फिर भी खुश नहीं होता। फ़रिश्ते ने गहरे साँस लिए। पर गुस्ल करना हराम कर दूँगी, जानती हूँ उसे रिझा रही हो ताकि वो दूसरी शादी करने का फ़ैसला बदले, मगर अब ऐसा नहीं होगा। हैदर ख़ान को जब कंवारी लड़की मिलेगी जो उसके बच्चों की माँ बनेगी, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, ये वादा है मेरा। ओज़ गुल फंकारी थी। जो बकवास तुम करी वो गलती से भी ख़ान ने सुन ली, और तुम जैसी लड़की की तरफ थूकेगा भी नहीं जिसमें शर्म लिहाज़ नहीं। फ़रिश्ते ने इस बार गुस्से से जवाब दिया, इस वक़्त में हैदर की बीवी वो थी। ओज़ गुल ने इसकी बकवास सुनने की खुद भी हिम्मत नहीं पा रही थी। ख़ान अगर मुझे अब बेशर्मी की हर हद भी करते देख ले, फिर भी उस शादी से इनकार नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए, आसमान गिरे या ज़मीन फट जाए, ओज़ गुल कहते हुए रुकी थी, उसके करीब होती गहरा मुस्कुरा फिर तुम माँ बन जाओ, अपनी मोरे से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगा। तुम जानती नहीं हो रुकिया खान हमसे कितनी मोहब्बत करता है। हैदर खान की सांसें बसती हैं अपनी मोरे में। देखा था ना अस्पताल में कैसे वो तड़प उठा था। ओज़गुल ने एक लफ्ज़ चबाया था, फरिश्ते लब काटते हुए रुख पलटे, बर्तन धोने लगे। कुछ कह रही थी वो सच था, बर्तन धोकर ही कपड़े भी धो लो। आज रात कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें हैदर खान के कमरे में जाने की। कुछ दिनों तक वो कमरा मेरा हो जाएगा, इसलिए अपनी नहुसत वहाँ से ख़त्म करो। ओज़गुल ने गरजदार लहजे में हुक्म दिया। कुछ दिनों तक इसलिए अपनी नहुसत वहाँ से ख़त्म करो। मैं अपना कमरा तुम्हें नहीं दूँगी, हवेली में बहुत से कमरे, इनसे कोई ले लेना। फ़रिश्ते के बर्तन धोते हाथ एक बार फिर से रुके थे। स्मार्ट लहजे में बर्तन धोने लगी। वो कमरा हैदर खान का है, वही कमरा मेरा होगा और उसका
अभी और इसी वक्त होगा। उसको गुस्से से कहती किचन से निकल गई थी। फरिश्ते अपने बहते आंसू साफ करते बर्तन धोने लगी। जानती हूँ फैसला होगा नहीं, फैसला हो गया, वो कमरा तुम्हारा होगा उसको। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ अपने खान का। खान का चेहरा देखना है, ये हक मुझसे ना छीनना। फरिश्ता शेल्फ पर हाजमाई फूट फूट कर रो दी थी। रुकिया खानम की गिरफ्तार आवाज़ सुनकर जी जान से कांप गई। अपने नाम की पुकार सुनते तेजी से किचन किचन से निकलकर बाहर आई। जी मोरे, रुकिया खानम को गुस्से में देखकर उसने डरते हुए पूछा, क्या बोला है तुमने औस को से कि तुम कमरा खाली नहीं करोगी, ना ही तुम आइंदा कोई काम करोगे? रुकिया खानम ने गरजते हुए पूछा, आप खान की दूसरी शादी करवा रही हैं? मैंने कुछ नहीं से मत छीनिए। फरिश्ते ने भीगे लहजे में इल्तिजा की, तुम होता कौन है कुछ कहने वाला? मैं हैदर खान का दूसरी शादी इसलिए करवा रहा है क्योंकि तुम इसका काबिल नहीं है। पांच औरत है, ऐसा औरत का वजूद कोई नहीं होता। अभी तुम्हारा मर्द का दिल तुमसे नहीं भरा, नया नया शादी है। दुनिया का हर मर्द एक जैसा होता है, बीवी बदसूरत भी हो तो मर्द को शुरू का दिनों में हूर नजर आता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता मर्द को हूर औरत में भी नुक्स नजर आने लगता है। औरत का सोऐब उसका औलाद ढकता है। बेढंगा औरत, बदतमीज, जबान दराज औरत, मर्द अपना औलाद की खातिर बर्दाश्त कर लेता। खूबसूरती का जादू हैदर खान पर सर चढ़कर दौड़ा है। इसको तुम्हारा तलाक याफ्ता होना बांझपन नजर नहीं आ रहा। आहिस्ता से उसका दिल तुमसे भरने लगेगा, फिर इसको तुम्हारा वजूद खटकने लगेगा। बच्चा के बगैर औरत पर आना खंडर की तरह होती है। जितना मर्जी रंग रोगन कर लिया जाए मगर वो रहता खंडर ही है। खंडर को मकान नहीं बनाया जा सकता। अक्ल से काम लो, अपना जगह खाली कर दो ताकि तुम्हारा कशिश उसका दिल में बना रहे। कभी कभी जब तुम उसको मुयस्सर आएगा वो शायद तुम्हारा कदर भी कर लेगा, मगर इस तरह तुम औसगुल से मुकाबला नहीं कर सकती। ओज़गुल उसकी माँ का पसंद का है, कल को उसके बच्चे का माँ बनेगा, इस हवेली का वारिस देगा, तो इस हवेली का मालिक और हैदर खान का मालिक ओज़गुल होगा। तुम जैसा बाँझ औरत नहीं। रुकिया खानम ने फनकारते हुए कहा, अगर मेरी तरह ओज़गुल भी बाँझ निकल आई तो फिर किसको हवेली का मालिक? फिर बनाएंगी इस हवेली को और हैदर खान का चिटाक। फरिश्ते की बात मुंह में ही थी। रुकिया खानम का भारी हाथ फरिश्ते के गाल लाल कर गया था। हमारा हैदर को बदवा दे रहा है, तुम हमारा जबान खींच लेगा। रुकिया खानम चीखी थी। फरिश्ते ने गाल पर हाथ रखे अपने लचते बदन को बमुश्किल संभाला। आरा हवेली से। रुकिया खानम ने गहरी सांस लेते कहा, खाला ओज़गुल। रुकिया खानम को सुर्ख और हाँफता बदन देखकर उनकी तरफ बढ़ी। मोरे में खान को बदवा देने का सोच भी नहीं सकती। उनको अल्लाह उनको हर खुशी दिन इनका ये हवेली बच्चों की कलकारियों से कुंजू, मगर आपको खुदा का वास्ता मुझसे मेरे खान को दूर ना करें। ओज़गुल का मकाम मैं नहीं लेना चाहती, मगर मेरा मकाम भी मत छीनें। फरिश्ते ने रोते हुए कहा, तुम्हारा मकाम हमारा बेटिया की जिंदगी में कुछ नहीं है। याफ्ता औरत हमारा कंवारा बेटा के दिल और हवेली में नहीं रह सकता। निकलो हमारा हवेली से। रुकिया खानम ने आगे बढ़ते उसे धक्का दिया था। हैदर खान उनके हार्ट अटैक के बाद उनके आगे पीछे फिर रहा था। उनके हाथ चूमता, पाँव चूमता। उन्हें पता था हैदर खान में उनकी सांसें बसती हैं।
مگر اب اندازہ ہوا تو وہ تو اپنی زندگی سے بڑھ کر انہیں کئی گنا بڑھ کر چاہتا تھا۔ وہ کمزوری ہے حیدر خان کی، اس لیے فرشتے جیسی کئی لڑکیوں کو چھوڑ سکتا، وہ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے فرشتے کو طلاق دلوانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فرشتے ان کے دھکے پر پیچھے کو ہود کر بری طرح لڑ کھڑا۔ مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ فرشتے نے پلٹ کر دیکھا، اپنے سامنے ارحام خانزادہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی نمی بڑی تھی۔ وہ روتے ہوئے ارحام خانزادہ کی باہوں میں سما گئی۔ ارحام سرخ چہرے کے ساتھ ششدر کھڑا تھا۔ ارحام نے بے یقینی سے حیدر خان کو دیکھا جو اس کے ساتھ ہی میں داخل ہوا تھا، مگر حیدر تو اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا، نہ اسے فرشتے کا دھکا دینا نظر آیا تھا، نہ فرشتے کے آنسو۔ وہ تو اپنی ماں کو پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ حیدر خان نے آگے بڑھتے رقیہ خانم کو اپنی باہوں میں بھرا۔ سرخ ہو رہا تھا، پورا بدن ہانپ رہا تھا۔ کیا ہوا مورے؟ حیدر خان نے بےتابی سے پوچھا۔ رقیہ خانم کا بی پی شوٹ کر رہا تھا، جیسے ان کی آنکھوں کے نیچے کی وینز پھول رہی تھی۔ جب ان کا بی پی شوٹ کرتا تھا ان کی طبیعت ایسی ہی خراب ہوتی۔ تابی سے فرشتے کے گال پر ہاتھ رکھا جہاں انگلیوں کا نشان تھا۔ ارحام خانزادہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ کیا ہوا فرشتے؟ تمہیں تھپڑ کس نے مارا؟ ارحام نے فرشتے کا چہرہ تھامتے تڑپتے پوچھا۔ رمز عشق تحریر نور آصف ابرش زمین کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی سٹل سی چھت کو گھور رہی تھی۔ باربینا کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا، ابرش نے اسے دیکھتے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ ہی کا نقصان ہوگا، یہاں کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ کے مرنے کے بعد امینہ خانم زران لالا کی دوسری شادی۔ بھابھی آپ کو کھانا کی ضرورت ہے، تھوڑا سا کھا لیں، ایسے میں آپ ہی کا نقصان ہوگا، یہاں کسی کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ کے مرنے کے بعد امینہ خانم زران لالا کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ پر پکا ہو چکا ہے، اور زران لالا ابھی امینہ خانم کے پاس ہی تھا۔ امینہ خانم کو کہہ کر گیا ہے وہ ان کا دوسرا شادی کا تیاری کریں۔ انہیں آپ جیسا منہ پھٹ بدتمیز عورت کے ساتھ نہیں رہنا، وہ سکون کو ترس گیا ہے۔ باربینا کی بات پر ابرش نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ زران نے یہ کہا، تمہارے سامنے کہا؟ ابرش نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ زران کے لفظوں کی باز گشت سنائی دی تھی۔ خودکشی کرنے جا رہا ہوں، اگر بچ گیا تو تمہارے پاس نہیں آؤں گا، پلوشا کے پاس جاؤں گا، شاید سکون مل جائے۔ باربینا تو یہی کہہ رہی تھی، وہ سکون کو ترس گیا ہے۔ ابرش نے آنسوؤں کی چادر سے باربینا کو دیکھا تھا۔ سب کچھ دھندلا سا نظر آ رہا تھا، آنکھوں کے آگے سیاہ چادر کی جیسے دیوار کھڑی تھی۔ ہاں بھابھی، ہمارا سامنے کہا، بلکہ حویلی کا ہر فرد کے سامنے کہا۔ سب تو ادھر ہی موجود تھا، وہ پلوشا، امینہ خانم، زینہ خانم، حویلی کا ہر ملازمہ، سب ادھر ہی موجود تھا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائے سب کے نام گن رہی تھی۔ وہ تھی بھی تو بہت معصوم، بمشکل 16 سال کی، کم عمر اور معصوم۔ لیکن بھابھی تم فکر نہ کرو، ہم کو لگتا ہے زران لالا غصے میں تھا، ایسا کہہ گیا۔ تمہارا بھی تو لالا سے لگتا نہیں ہے، تم یہ کھانا کھاؤ۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا یہاں ہے بھی کوئی نہیں، اس لیے تمہارا ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے۔
भाभी तुम्हारा घर वाला कहाँ है? बारबीना ने उसे तसल्ली देते अब बहुत मासूमियत से सवाल तका। उसका मासूमियत में किया सवाल अपने के जख्म हरे कर गया था। वो कर्ब से सिसकी लेकर रह गई। मेरे घर वाले अपने के लब कपकपाए थे। वो भी मुझे भूल गए हैं बारबीना। आज 5 माह हो गए हैं मगर मेरा किसी ने पता नहीं क्या, किसी को शायद मेरी परवाह ही नहीं, मुझसे मोहब्बत किसी को नहीं है। अब्रिश बुरी तरह रो दी थी। कोई गमगसार नजर आया था। जरान की बेवफाई का सोचते मरने वाली हो गई थी। लेकिन भाभी ये भी तो हो सकता है तुम्हारा घर वाला ही किसी मुसीबत में हो और तुम्हें ही ना पता हो। वरना ये कैसा हो सकता है तुम्हारा मोरे तुम्हारा अम्मा को तुम्हारा कभी याद ना आया हो। परवाना की बात पर अब्रिश अपने आंसू साफ करते जमीन से उठती बारबीना के मुकाबिल आई थी। तुम ठीक कह रही हो बारबीना, ये सोच मुझे कितनी मरतबा आई है। मामा ने एक बार भी मेरा पता नहीं किया। वो सच में किसी मुसीबत में है। मेरा दिल कहता है मगर मैं कैसे उनके बारे में पता करूं। मैं क्या करूं? अब्रिश ने रोते हुए पूछा। वो रोते हुए एक बच्ची से सवाल कर रही थी। भाभी तुम फोन कर लो, तुम्हारा घर वालों का नंबर तो होगा तुम्हारे पास। बारबीना ने मशवरा दिया। बारबीना ने मशवरा दिया था। हाँ तुम्हारे पास फोन है क्या? तुम मुझे दे सकती हो? अब्रिश ने तजाइया लहजे में कहते उसकी तरफ आंस भरी निगाहों से देखा। भाभी मैं दे देता है मोबाइल पर आप किसी को बताना ना। बारबीना की रंगत ये एकदम खौफ से जर्द पड़ी थी। तुम फिक्र ना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब्रिश ने उसकी बात के जवाब में जल्दी से कहा। बारबीना ने अपनी शीशों वाली पठान फ्रॉक की जेब से फोन निकाल कर अब्रिश की तरफ बढ़ाया। जिसे अब्रिश ने बेताबी से थामा था। अब्रिश ने जल्दी से जहले का नंबर डायल किया। वो बंद था। उसने अनाया और घर के लैंडलाइन का नंबर बारी बारी डायल किया मगर सभी बंद थे। अब उसने बेताबी से कांपते हाथों से आहिल का नंबर डायल किया। आहिल का नंबर ऑन था। अब्रिश के हाथों की कपकपाहट के साथ उसके दिल की धड़कन भी तेज हुई थी मगर आहल का नंबर दो चार बेल के बाद बंद हो चुका था। काट दिया गया था। अब्रिश ने दोबारा से नंबर डायल किया। नंबर अब बन जा रहा था। अब्रिश परेशान हुई थी। आज से 4 माह पहले दरक्षा से मोबाइल लेकर भी सबके नंबर ट्राई किए थे, तब भी बंद थे और आज भी बंद थे। मगर आहिल का नंबर ऑन था जो अब किसी ने बंद कर दिया था। अब्रिश के अब हाथ पैर कांपना शुरू हो चुके थे। उसे पूरा यकीन हो चुका था सब किसी मुसीबत है। अब्रिश ने अब सईम का नंबर डायल किया जो पहली बेल पर उठा लिया गया था। सईम मैं अब्रिश ने जल्दी से कहा। अब्रिश सईम की आवाज़ में हैरानगी थी। वो भरपूर चौंका था। पास खड़ी बारबीना उंगली दांतों में दबाए बहुत मासूमियत से उसे देख रही थी। ज़हीन मामा अनाया आहिल कहाँ हैं? उनके नंबर क्यों बंद हैं और लैंडलाइन भी ऑफ है? सब ठीक तो हैं? अब्रिश ने एक ही सांस में पूछा था। अब्रिश तुम्हें कुछ नहीं पता, ज़हीन की हैरान आवाज़ से पीकर पर गूंजी। कुछ नहीं पता? क्या हुआ है ज़हीन? अब्रिश के लहजे के साथ हाथों की कपकपाहट भी पड़ी थी। अनाया आज से 4 माह पहले किडनैप हो चुकी है। ज़हीन की बात पर अब्रिश के कदम लड़खड़ाए थे। बारबीना ने आगे बढ़कर जल्दी से उसे संभाला वरना वो जमीन बोस हो जाती। ज़हीन ये तुम क्या कह रहे हो? अब्रिश ने कांपते लहजे में पूछा। अब्रिश अनाया किडनैप हो चुकी है और इसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं तुम्हारा शौहर है। ज़हीन की बात पर वो आंधियों की जद में आई थी। अगर बारबीना ने उसे थामा ना होता तो वो अब की बार जमीन बोस हो जाती। क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो तुम? वो ऐसा क्यों करेगा? अगले ही लम्हे वो हलक के बल चुकी थी। वो अज्जड़ गवार हो सकता था मगर सफाक नहीं, ये नहीं कर सकता था। अब्रिश आहिल ने बाबरिक को मारा है, ये सच है। उसका बदला लेने के लिए जरान खान ज़ादा ने अनाया को किडनैप कर लिया।
पास से भागी और मुझसे निकाह करने जा रही थी। उसने सब का बदला भी लिया है। इसने मुझे भी मारने की कोशिश की है। मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी जान बचाई है। मैं आज भी इससे छुपता फिर रहा हूँ और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें भी तो ज़रान किडनैप करके लाया था। उसके लिए ये सब बहुत आसान है। वह मज़ाज बंदा है, दिल में बात रखने वाला। वो इतनी आसानी से कुछ नहीं बोलता। मुझे यकीन है उसका सलूक तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। ज़हीम की बातों पर अब्रिश ने अपने पेट पर हाथ रखा था। सच ही तो कह रहा था। वो सच में सफाक था। अपने बच्चे को मारने से बढ़कर सफाकी क्या हो सकती थी भला? आंखों से बहते गर्म स्याल में इजाफा हुआ था। आज फिर पहलू में दर्द महसूस हुआ था। बच्चा खोने के दर्द की ऐंठन फिर से महसूस हुई थी। पागलों की तरह अपने पेट पर हाथ रखकर सिसकने लगी। खुद ही सोचो, और किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है अनाया से पुप्पो से? सैली पुप्पो ने खुद हमें ये बात बताई है। बेचारी इस गम में पिछले 4 माह से कोमा में है। आहिल का भी कुछ पता नहीं है। ज़हीम पता नहीं और क्या कह रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फोन उसके हाथों से गिर चुका था। बारबीना ने जल्दी से फोन जमीन पर गिरा फोन उठाया, जिस पर एक स्क्रैच भी नहीं आया था। अबरी जमीन पर घुटनों के बल गिरते फूट फूट कर रो दी थी। जरान खानजादा ने अनाया को किडनैप किया। उसका दिल नहीं मान रहा था, लेकिन अगर ये सच नहीं था तो उसने अनाया के किडनैप होने की बात उससे क्यों छुपाई? और इससे सबसे राब्ता करने से क्यों मना करता था? जहले की कंडीशन के बारे में क्यों नहीं उसे बताया? अपनी जमीन पर घुटनों के बल बैठी फूट फूट कर रोक दी थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जरान? अपनी बाल मुट्ठियों में जकड़े चीखी थी। मैं बहुत मुंतकम मिजाज बनता हूँ। जब तक बदला ना ले लूं चैन से नहीं बैठता। सरान के लफ्ज उसकी समातों में गूंजे थे। मुंतकम मिजाज बंदा तो वो था। उसने उससे हर चीज का बदला ले लिया था। अब्रिश ने अपने गालों पर हाथ रखे जहां जरान के थप्पड़ों की चलन थी। उसे आज भी महसूस होती थी। जरान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पागलों की तरह चीखी थी। या तुम ही ये सब कर सकते हो? जो इंसान अपने बच्चे को मार दे वो कुछ भी कर सकता है। अब्रिश अपने आंसू साफ करते गहरे सांस लेते चीख उठी। भाभी क्या हुआ है? बारबीना अब्रिश की तरफ बढ़ी थी। उसकी मासूम बड़ी बड़ी आंखों में नमी थी। बारबीना, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम्हें खुदा का वास्ता है, इनकार मत करना। अब्रिश ने उसके आगे हाथ जोड़े। बोले, भाभी हमसे जो हो सका हम जरूर करेगा। बारबीना ने पुरअज़्म लहजे में कहा। बारबीना, किसी तरह मुझे इस हवेली से निकाल दो। अब्रिश रोते हुए बोली। लेकिन भाभी हम कैसे? बारबीना ने मासूमियत से परेशानी से सवाल किया। बारबीना, जरान हवेली नहीं है, ना ही उसका लाला है इधर। शहराम भी अस्पताल होता है। मुश्किल नहीं होगा यहाँ से निकलना। अगर जरान आ गया तो उसे खबर होगी मुझे सब कुछ पता चल गया है। वो मुझे कभी यहाँ से निकलने नहीं देगा। वो मुझे कैद कर लेगा। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। अभी ये तजाया लहजे में बोली। भाभी, कह तो तुम ठीक रहा है। इस वक्त हवेली में कोई नहीं है, सिर्फ दाजी हैं। वो भी मर्दाने में अपना कमरे में है। और सब अपने अपने कमरों में चला गया होगा। रात भी तो बहुत हो गया है। बारबीना पर सोच अंदाज में बोल रही थी। भाभी, हम तुमको हवेली के पिछले दरवाजे से निकाल सकता है, मगर कोई गाड़ी नहीं है। तुम आगे से कैसे जाओगी? बारबीना की बात पर अपनी ने जल्दी से आंसू साफ किए थे। तुम मुझे इस हवेली से निकाल दो, मैं देख लूंगी। यहाँ कहीं से तो गाड़ियाँ इस्लामाबाद की तरफ जाती होंगी। मुझे पैदल रास्ता गाइड कर दो। मैं एक बार यहाँ से निकल गई
मैं इस्लामाबाद जाकर अपनी एम्बेसी को कॉल कर दूंगी, फिर इस ज़रान खानज़ादा को मेरी एम्बेसी ही देखेगी, एक एक बात का बदला लेगी। अब अब्रिश बादशाह इन खानजादों से कहीं का नहीं छोड़ेगी, अब्रिश बादशाह इन खानजादों को। अब ये मुंह छुपाते फिरेंगे। अब्रिश अटल लहजे में गर्राई थी। अब्रिश ने अलमारी की तरफ बढ़ती अपनी बड़ी सी चादर निकाल कर अपनी गिर्द अच्छी तरह ओढ़ी। भाभी ये मोबाइल रख लो अपना पास, तुम्हारा काम आएगा, तुमको इसका ज़रूरत पड़ सकता है। बारबीना ने उसे अपना मोबाइल पकड़ा। बारबीना, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं बोलूंगी। अब रिश्ना आंखों से वो मोबाइल पकड़े तो शुक्राना लहजे में बोली, भाभीना तुम्हारे पास कुछ पैसे भी होंगे? अब्रिश ने नम आवाज में कहा, हाँ भाभी हैं। भाभीना ने अपनी शर्ट के गले में हाथ डालते चंद हजार के कुछ नोट उसे पकड़ाए थे, जिसने अब्रिश ने तशक्कुर के साथ थाम लिए। जिसे अब्रिश ने पकड़ते अपनी मुट्ठी में दबोचे थे। अब्रिश तेज तेज कदमों से ऊंचे नीचे रास्तों पर दौड़ रही थी। पहाड़ों के दरमियान सड़कें ऊपर नीचे भी नहीं थी। वो पागलों की तरह इन रास्तों पर भाग रही थी। हो रही थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। रात सर्द और गहरी तारीख थी। मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। उसने रुकते हुए हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा, जो चादर के नीचे से भीग रहा था। मुट्ठी में दबे पैसे भी गीले हो चुके थे। अब्रिश ने मोबाइल को चादर में छुपाने की कोशिश की, मगर बारिश बहुत तेज थी। मोबाइल फिर भी भीग रहा था, मगर वो अभी तक बिल्कुल ठीक था। वो हैरान भी हुई, मोबाइल को कुछ क्यों नहीं हुआ। उसने मोबाइल गले से शर्ट के अंदर डालते उसकी हिफाजत करने की कोशिश की थी। वो फिर से अब इन रास्तों पर भागने लगी। बारिश के जोर के साथ उसकी आंखों में बरसते आंसू भी जोरों पर थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था जरान ने ये सब किया, मगर सारे फैक्ट उसी की तरफ जा रहे हैं। होता था वो सच में सफाक था। उसकी रिसर्च आज से ही साबित हुई थी। खानजादा बहुत बेरहम होते हैं, मगर वो फिर भी अपने दिल में उसके लिए नफरत महसूस नहीं कर पा रही थी। उसकी अनाया 4 माह से जरान की कैद में है। अब ऋषि रुकते हुए अपने चकराते सर को थामा था। जरान की सफाकी उसकी जान ले रही थी। उसने बड़ी सी चादर अपने वजूद पर अच्छी तरह ओढ़ी। वो इस चादर में छुप नहीं रही थी, बल्कि खुद को छुपा रही थी। उसे जरान की तरह इस पर्दे से भी मोहब्बत हो गई थी। अब मरते दम तक इस चादर का साथ नहीं छूटना था। वो स्याह चादर में लिपटे भाग रही थी। अब वापस कभी भी उसे सफाक इंसान की पनाहों में नहीं आना था। अब ऋषि ने अपने पेट पर हाथ रखा। वो फिर से फूट फूट कर रोती थी। उसे अपना बच्चा जान से ज्यादा अजीज था, मगर वो उसे खो चुकी थी। उसी सफाक इंसान की वजह से वो अपना बच्चा खो चुकी थी। अब ऋषि ने अपने पेट पर हाथ रखकर आसमान की तरफ देखा। काश ये बारिश का जोर आज उसकी जान ले ले। उसकी कपाते लबों ने जैसे इल्तजा की थी। ऐसे ही ठंडे बर्फ के मौसम में सफाक इंसान की खुशबू से पहली मर्तबा अपने हवासों पर छाते महसूस हुई थी, जब उसने अपनी मनमानी करते बड़े धड़ल्ले से उसे अपनी गोद में उठाया था। उस दिन वो उसके हवासों पर सवार हो गया था। पहली मर्तबा कोई मर्द करीब आया था। वो गोद में उठाए सीने के साथ लिपटा गया था। महरम नहीं था, मगर महरम जैसा हक जता गया था। लम्स दिल में ऐसा धड़का कि दिल की धड़कनों में धक धक की जगह सरान सरान गूंजने लगा। तुम नहीं हो मगर तेरा एहसास है, मगर दिल की दीवारें सुनी, क्या तुम्हें इसकी खबर है? दिल की राहों में जाने कितने मोड़ आए, अजनबी से लगते हैं।
तुम घर को क्या कभी भूल पाएगी? दिल ने सवाल किया था। जवाब नफी में आया था। वो अपनी पाशा थी, मोहब्बतों की तरसी हुई लड़की। वो अपने रिश्तों से कभी नफरत कर ही नहीं सकती थी। जानती थी ये नामुमकिन है। वो उसे कभी नहीं भूल सकती थी। उसने जितनी झूठी मोहब्बत दी थी, वो उसके लिए अब सब कुछ थी। वो आसमान की तरफ देखते फूट फूट कर एक बार फिर से रो दी। मैं पलवशा से शादी करूंगा मोरे, मैं वादा करता हूँ आपसे। सरान के लफ्ज उसकी समायतों में गूंजे थे। वो बरसती बारिश में फिर से रो दी थी। जा डगर छोड़ आई, तुम रखो अपनी यादें, मैं अपना कुछ सोचूंगी। रोते रोते हंस पड़ी थी। उसने बरसते आंसू भी धरती से अपनी आरिस से साफ किए। मैं वादा करती हूँ मिस्टर खानजादा, तुम्हारे जुल्म का हिसाब मैं तुमसे लेकर रहूंगी। तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूंगी। अब पाशा के कहर से अब तुम बच नहीं सकोगे। ये वादा है तुमसे। अब ऋषि से यहाँ तड़स से तारीख सड़क पर भीगते हुए खुद से वादा किया था। वो तेज तेज कदमों से फिर से भागने लगी। वो भागते भागते बहुत आगे निकल आई थी। अब स्याह तारीख सड़कें, गहरी खाइयां और इतराफ में पहाड़ नजर नहीं आ रहे थे। रोशनियां नजर आ रही थी। अब ने एक ढाबा देखा जहां सिर्फ मर्द ही मर्द नजर आ रहे थे। मर्द ही मर्द नजर आ रहे थे। वो चारपाइयों पर बैठे चाय पी रहे थे। वो आगे बढ़ते इसी होटल की शेड के नीचे खड़े होकर गहरे सांस लेने लगी। शदीद नकाहत के बायस उसे चक्कर आ रहे थे। 2 दिन से खाना भी तो ना खाने के बराबर खाया था। जल्दी से कपकपाती अपनी चादर अच्छी तरह खुद पर लपेटी। बहुत से मर्द मर्द हजरात उसे सर्द निगाहों से घूर रहे थे। वो जल्दी से आगे बढ़ते तेज तेज कदमों से उसी होटल की बैक साइड पर आ गई। वहां पर कोई भी नहीं था। अब बारिश अभी भी हो रही थी, साथ ही बहते दरिया का शोर था। अब ऋषि गहरे सांस लेते, चादर के अंदर हाथ डालते, अपने गले से मोबाइल निकाला। बस सच शुक्र वो अभी भी चल रहा था। अब ने एक बार फिर से आहिल का नंबर डायल किया जो बंद था। वो बेबसी से रो दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किसकी मदद ले। उसे एक बार सिर्फ बस स्टैंड तक पहुंचना था, मगर पहाड़ गहरी खाइयां खत्म ही नहीं हो रही थी। उसने कांपते हाथों से आहिल को टेक्स्ट किया था। आहिल, मैं अब्रिश हूँ, प्लीज़ जब ये तुम मैसेज देखो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करो। अब्रिश ने टेक्स्ट उसने टेक्स्ट लिखने के बाद वहां से गुजरते एक मर्द को पुकारा। उसने अब्रिश को घूर कर देखा था। अब्रिश उसकी सर नज़र पर नजरें झुका गई थी। बेशक चादर में लिपटी थी, मगर इतनी रात को एक औरत का यहाँ होना उस मर्द को पसंद नहीं आया था। यहाँ से बस स्टैंड कितना दूर है? अब्रिश ने मुंह छुपाते हुए पूछा था। यहाँ से बस स्टैंड बहुत दूर है, तुम इतना दूर नहीं जा सकेगा। जहाँ से आया है वापस चला जाओ। अपना इज्जत का नहीं तो अपना घर वालों का इज्जत का सोच लो। इतना रात को तुम औरत लोग को घर से निकलना जेब नहीं देता। जहाँ से आया है वहां से वापस चले जाओ, वो आदमी गुस्से से बोलता। चादर झटकता चला गया था। अब गहरी सांस लेते आगे बढ़ी। एकदम उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल गूंज उठा था। अब्रिश ने मोबाइल देखा तो आयल का नंबर जगमगा रहा था। अब्रिश ने जल्दी से कॉल रिसीव करते फ़ोन कान से लगाया। हेलो आहिल, अब्रिश ने रोते हुए पुकारा था। अब्रिश। स्पीकर पर आहिल की नम आवाज़ गूंजी थी। आहिल। अब्रिश की लबों की कपकपाहट बढ़ी थी। अब्रिश। आहिल की आवाज़ भी जैसे हल्क में दम तोड़ गई थी।
फ़ोन पर दोनों रो रही थी। 1 साल छोटा था उससे आहिल, मगर उन दोनों में बहुत प्यार था। ज़ेहली और पाशा का प्यार मिला ही नहीं था किसी को। इसलिए अब्रिश ने आहिल और अनाया को एक माँ की तरह प्यार किया था। मगर आज किस्मत किस मोड़ पर ले आई थी। वो 5 माह से एक दूसरे से दूर थे। एक दूसरे की कुछ खबर ना थी। "साहिल कहाँ हो तुम? मामा कैसी हैं मेरी अनाया?" अब्रिश रोती हुई सिसक पड़ी थी। "अब्रिश मामा बिल्कुल ठीक हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अनाया हमारी गुड़िया वापस आ गई है।" आहिल की बात पर अब्रिश के कांपते हाथ की फ़ोन पर पकड़ मजबूत हुई थी। "अनाया वापस आ गई है क्या? क्या कह रही हो? कैसे हुआ ये?" ज़रान ने उसे छोड़ दिया। अब्रिश ने कँपकँपाते लबों से एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। और फिर ज़रान भाई के हम पर बहुत से एहसानात हैं। अगर वो ना होते मैं आज ज़िंदा ना होता। अनाया को behज़ाद खान ने अगवा किया था। आज ही ज़रान भाई ने बताया कि अनाया को वो छुड़वा चुके हैं। अब तो वो तुम्हारे पास पहुंच चुकी होगी। आहिल उसे सब कुछ बताता चला गया था। उसका ज़रताज को पकाना, ज़रान का उसे बाबरिक से बचाना, बाबरिक की मौत, behज़ाद का अनाया का अगवा करना। वो साएं साएं कानों से सुन रही थी। अब्रिश ये लो मामा से बात करो। अब फ़ोन पर ज़ेहले की आवाज़ गूंज रही थी। बोल ही नहीं पा रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाया था। ज़ेहली उसे मुसलसल पुकार रही थी। उसके लब हिलने से कांसे थे। पहाड़ों पर तारीकी के साए बढ़ते जा रहे थे, बिल्कुल वैसे जिसकी उसकी आंखों की तारीकी बढ़ती जा रही थी। वो फ़ोन हाथ में पकड़े फूट फूट कर रो दी। फ़ोन पर ज़ेहली की मुसलसल आवाज़ गूंज रही थी। आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी। उसे बेताबी से पुकार रही थी। वो फ़ोन हाथ में पकड़े वापिस हवेली की तरफ भागी थी। अब वो पागलों की तरह भागते हुए हवेली के रास्ते की तरफ भाग रही थी, जिन रास्तों से गुजरकर वो ज़रान खानज़ादा की पनाहों से वापस जा रही थी। अब उन्हीं रास्तों से गुजरती वो ज़रान खानज़ादा की पनाहों में वापस जा रही थी। वो बेतहाशा रोते हुए पूरी कुव्वत से भाग रही थी। उसे ज़रान के वापस आने से पहले हवेली पहुंचना था। ज़रान, अब्रिश ने रोते हुए उसे पुकारा था। वो भागती जा रही थी। उसके कदम अब बहते दरिया के ठंडे पानी में उतरे थे। कुछ होश ना था। उसे तो वापस हवेली में जाना था, उस कमरे में जाना था, उस सितमगर की कैद में वापस जाना था। बारिश की आवाज़ ने बहते दरिया की आवाज़ को खौफनाक बना दिया था। उसके कदमों की छपाक पड़ रही थी। यकदम वो दरिया में मौजूद किसी बड़े से पत्थर से टकराई थी। मुंह के बल बहते दरिया में जा गिरी। उसने अपनी चादर को संभालते मोबाइल को बहते दरिया की नज़र होने से बचाया था। उसे अब समझ आई थी। ये मोबाइल अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ था? ये मोबाइल अच्छे ब्रांड का बहुत महंगा मोबाइल था, जिसके अतराफ में वाटर प्रूफ कवर था। उसे अंधेरी खौफनाक रात में शायद इस मोबाइल की ज़रूरत पड़ सकती थी। वो जल्दी से पानी से उठी थी। उसे हर हाल में वह हवेली वापस पहुंचना था। जानती थी वो दुश्मन जहाँ वापस आ गया तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। इस सितमगर के लफ्ज़ उसकी समायतों में गूंजे थे। हमारे रिश्ते में बेयकीनी है। तुम्हारी इसी बेयकीनी से तुम हमारे रिश्ते को खो दोगे। आ गया था उनके रिश्ते में क्या कमी थी। उसे समझ आ गया था वो उसे सच कह रहा था। उसका पलवशा से कोई ताल्लुक नहीं था। वो सच कह रहा था। ज़हीम ने उसकी ड्रिंक में गोलियां मिलाई थी। वो सच कह रहा था। वो सच कहता रहा। जरान खानज़ादा ने आहिल को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डाली, अपनी बहन की खुशियां दांव पर लगा दी, मगर आहिल का पता किसी को चलने नहीं दिया। वो सच्चा था, हमेशा से था। वो थोड़ा कड़वा था, मगर था सिर्फ उसी का। वो रोते हुए दरिया के बहते पानी से गुजरते पागलों की तरह भाग रही थी। बेवफा तुम नहीं हो, बेवफा हम नहीं है। अपनी किस्मत में शायद गम भी कुछ कम नहीं है।
सच में अज्जड़ गवार बेमहर था, मगर वो बेहिस नहीं था, वो सफाक नहीं था, वो रिश्तों पर जान देने वाला इंसान था। वो सब समझ गई थी। वो रोते हुए भागती जा रही थी। उसका मोबाइल फ़ोन मुसलसल बज रहा था। आहिल का नंबर जगमगा रहा था। उसने यस का बटन दबाकर कॉल रिसीव ही की थी कि एकदम उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आन रुकी थी। तेज़ रोशनी से उसकी आंखें चिंधिया गई थीं। उसने आंखों पर हाथ रखा। गाड़ी से निकलता ज़हीम को निकलता देखकर उसने गुस्से से गहरे सांस लेते अपनी मुट्ठियां भींची थी। अब्रिश, ज़हीम उसे पुकारते उसकी तरफ बढ़ा। वो 2 कदम पीछे हुई थी। अब्रिश, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। फूफो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, वो आखिरी सांसें ले रही हैं। ज़हीम ने उसकी कलाई थामी थी। पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर सन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया था। बारिश के शोर में उसकी थप्पड़ की गूंज काफ़ी गूंजदार थी। उसकी नाजुक उंगलियों का निशान ज़हीम के गाल पर छप गया था। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में वो निशान काफ़ी नुमाया था। हाथ रखे गस्वनाक निगाहों से अपनी को घूर रहा था। वो गहरे सांस लेते जवाबन उसे शोलाबार निगाहों से घूर रही थी। खबरदार मुझे अपने गलीस हाथों से छुआ, जान ले लूंगी तुम्हारी। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। अबरिश बपरी शेरनी की तरह कर रही थी। तुम आस्तीन में छुपे सांप निकले ज़हीम। शुक्र है मैंने उस दिन तुमसे निकाह नहीं किया। जनान का किस मुंह से शुक्र अदा करूं जिसने तुम जैसे दरिंदे से मेरी जान छुड़वाई। की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आए? इसका मतलब है बाबीना भी तुम्हारे साथ मिली हुई है। तुम पहले से यहाँ ही मौजूद थी। ये सोची समझी प्लानिंग थी। तुम लोगों ने मुझे ट्रैप किया। अब रिशहलक के बल चीखी थी। तुम्हें ट्रैप किया नहीं, तुम ट्रैप हुई हो। तुम्हारी हवेली से तुम्हें नहीं उठाया, तुम खुद ही हवेली से निकली हो। अपरिश, तुम खुद ही बेवकूफ़ बन गई। ये मोबाइल तुम्हें इसलिए दिया ताकि तुम्हारी लोकेशन ट्रेस की जा सके। तुम इतना महंगा मोबाइल भी बारबीना के हाथ देख कर समझ नहीं सकी। जही मुस्कुराते हुए गाड़ी के साथ टेक लगा गया। अब्रिश पर गहरी नजर डाली। अब्रिश ने अपनी चादर मजीद अच्छी तरह खुद पर फैलाई। जहीम ने जानदार कहका लगाया, कोई फायदा नहीं मेरी जान, आज सारे पर्दे उतार दूंगा। मैं मरा जा रहा हूँ तुम्हारे हसीन। तुम्हारे हसीन सरापे को बगैर किसी पर्दे के देखने के, जो सरापा कपड़ों में इतना खूबसूरत हो, बिना कपड़ों के कैसा होगा? ज़हीम ने कमीनगी से कहते से आंख मारी थी। अब्रिश ने गहरी सांस आते हुए उसकी तरफ बढ़ती उसके मुंह पर फिर से थप्पड़ जड़ दिया था। इससे पहले वो दूसरा थप्पड़ जड़ती ज़हीम उसकी कलाई जकड़ चुका था। रही हो मेरी जान, इतना ही गुस्सा दिखाओ जितना आज रात हम लोगों को बर्दाश्त कर सको। आज तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ होगा, इतना कि तुम्हारी सोच है। ज़हीम का राया था। तुम जानते नहीं हो ज़हीम, मेरा नाम अब्रिश सरान खानज़ादा है। जान दे दूंगी मगर अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगी। अपनी कलाई छुड़वाते हुए चीखी थी। वो उसकी नाजुक कुलाई पकड़कर मरोड़ने ही लगा था कि गाड़ी के तेज हान पर उसने एक नज़र गाड़ी को देखते लब भींचते उसकी कलाई छोड़ दी थी। अब्रिश, तुम शुरू से ही जज्बाती हो। ज़रान ने तुम्हें हर बार बचाया है मगर अब नहीं। तुम्हारे निकाह वाले दिन मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार करने नहीं बल्कि तुम्हें अगवा करने आया था। बाहर ही मेरी गाड़ी में मेरे दोस्त खड़े थे तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए। मगर ज़नान ने मेरे प्लान पर पानी फेर दिया।
फिर तुम खुद ही चलकर मेरे पास आ गई। मैंने सोचा तुम्हें बीवी बना लेता हूँ। हाँ, मगर तुम्हें किसी के बिस्तर की ज़ीनत बनाने का इरादा नहीं था। बीवी बनाकर इतना मार्जिन तो तुम रखती थी, मगर तुम्हारे हाथों बहुत से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का इरादा ज़रूर था। तुम अपने शौहर की खातिर अपनी खूबसूरती का थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल कर ही लेती। ज़ईम ने हंसते हुए आंख मारी। आज भी अपना हर अरमान पूरा करूँगा। चलो निकाह करके ना सही, ऐसे ही सही तुम्हारे जिस्म से प्यास बुझा लूँगा। ज़ईम ने गुस्से से एक लफ्ज़ चबाते उसकी कलाई जकड़ी थी। ज़ईम छोड़ो मुझे। अब्रिश ने चीखते हुए अपनी कलाई छुड़वाई थी। वो उसी कलाई से जकड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते उसे अंदर धकेला था। इससे पहले वो गाड़ी से निकलती किसी ने उसकी कलाई जकड़ी थी। अब्रिश करंट खा कर उछली थी। अब्रिश ने पलटते हुए उसे देखा। पिछली सीट पर बेहज़ाद खान को देखकर उसकी सांसें रुकी थी। बेहज़ाद, अब्रिश के लब बेयकीनी से हिले थे। अपनी मूंछों को ताव देता गहरा मुस्कुराया था। ज़ेम गाड़ी का अगली सीट का दरवाज़ा खोल कर बैठा। उसने पीछे मुड़कर बेहज़ाद खान को मुस्कुराते हुए देखा था। बेहज़ाद खान भी पलकें झपकाते गहरा मुस्कुराया था। वो अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल से अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल से बेहज़ाद खान ने उसी पल ज़ईम के सर पर फायर कर दिया था। ज़ईम उसी पल साकित हुआ था। अब्रिश मुंह पर हाथ रखे चीख उठी थी। इसका यही अंजाम होना था। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो पिस्टल की नोक को चूमता मुस्कुराते हुए बोला था। अब्रिश इससे दूर होती सहमते हुए दरवाजे के साथ टेक लगा गई थी। जरबाब खान, गाड़ी चलाओ। फैजाद खान ने गरजते हुए हुक्म देते अब्रिश पर केरी नजर डाली थी। से पैर तक चादर में लिपटी दरवाजे के साथ टेक लगाए थर थर कांपते सहमती निगाहों से देख रही थी। वल्लाह, तुम सच में हसीन हो। आज की रात मेरी जिंदगी की हसीन रात होने वाली है। वो भारी आवाज में बोलते सीट के साथ टेक लगाए आंखें मौद गया था। हैदर खान, ये सब क्या है? अरहाम खानजादा ने सबसे पूछा। हैदर की सर नजरों का इर्तकाज फरिश्ते पर था, जो हैदर खान की सर निगाहों अरहाम खानजादा से दूर सर निगाहों पर अरहाम खानजादा से दूर होते नजरें झुका गई थी। फरिश्ते ने जल्दी से अपने बहते आंसू आरे से साफ किए थे। अरहाम खानजादा ने लब भींचे फरिश्ते को देखा था, जो नजरें झुकाए लरसती खड़ी थी। फरिश्ते का पूरा बदन इत्याश की कैफियत में था। स्याह शलवार कमीज पर स्याह दुपट्टा ओढ़े हुए थी। सूट मलक जा और सिलवटों से भरपूर था। रंगत जर्द हो रही थी। उसकी मौजूदगी पर भी थर थर कांप रही थी। अरहाम खानजादा ने कर्ब से उसे देखा था। उसे तो उसकी मौजूदगी से भी ढारस नहीं हुई थी। हैदर खान, तुम्हारी मोरे ने फरिश्ते को धक्का दिया। फरिश्ते के गाल पर उंगलियों का निशान है। ये सब क्या है? अरहाम खानजादा ने लब भींचते पूछा। लहजा काफी सर्द था, मगर आवाज उसने दानस्ता नीचे ही रखी थी। अपनी बहन की हालत देखते वो खुद पर काबू पा गया था। वो जिस तरह खौफजदा सी खड़ी थी, वो समझ गया था हैदर खान की खौफ से लरज नाराजगी की खौफ से लरज रही है। अपनी की बहन की खातिर वो अपने खुद पर गुस्से पर काबू पा गया था, मगर वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। मगर वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। मर्द को उसके रिश्ते, उसकी कमजोरियां कहाँ के नहीं छोड़ती। आज भी अपने रिश्तों, अपनी कमजोरियों के, के बेपनाह पर बेबसी के इंतहा पर था। अरहाम खानजादा सुर्ख आंखों से अपने गने बालों में हाथ फेर कर रह गया। हैदर खान जैसे इंसान को अपनी बहन को सौंप कर वो बेफिक्र हो गया था। इतने वादे, इतने मान से तो वो फरिश्ते को रुखसत करवा कर लेकर गया था। अगर यही सलूक करना था तो उसके पास हवेली में ही बेहतर थी। अरहाम ने फिर से फरिश्ते पर नजर डाली। उसका दिल गम से फट रहा था।
تم حیدر خان سے کیا پوچھتا ہے؟ ہم بتاتا ہے تمہاری بہن نے ہم سے بدتمیزی کیا، ہمارا حیدر کو بددعائیں دیا، ہم نے مارا اسے تھپڑ۔ رقیہ خانم غصے سے چیخی تھی، خان میں نے بدتمیزی نہیں کی، میں آپ کو بددعا دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ فرشتے کپ کپاتے لبوں سے بولتے حیدر خان کی طرف بڑھی۔ حیدر خان کی سرد نگاہیں اس کا دل ہلا رہی تھی۔ حیدر خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ فرشتے ڈبڈبائی آنکھوں سے وہیں پر رک گئی تھی۔ یہ دیکھتا رہا خان زادہ ضبط سے رخ پر لڑ گیا تھا۔ تم ہم پر جھوٹا ہونے کا الزام لگا رہی ہو؟ ہم جھوٹا ہے کیا؟ رقیہ خانم نے گرجدار آواز میں بولتے اپنے سینے کو جکڑا تھا۔ رقیہ خانم کو اپنے سینے کو جکڑا دیکھ کر حیدر خان نے بے سے انہیں اپنی باہوں میں بھرا۔ مورے کیا ہوا آپ کو؟ حیدر نے پریشانی سے انہیں پکارا، جن کا رنگ تیش و اشتعال سے سرخ ہو رہا تھا، جو ان کے بی پی شوٹ ہونے کا اندیا دے رہا تھا۔ اب وہ سینے کو جکڑ گئی تھی۔ حیدر خان کی سانسیں الجھی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت دی تھی کہ رقیہ خانم کو دوسرا اٹیک نہیں آنا چاہیے، دوسرا اٹیک ان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ فرشتے میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ مورے کا تم ہر حکم مانو گے؟ مورے کو تم نے کسی بات کا جواب کیوں دیا آخر؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حیدر خان گرجا تھا۔ فرشتے جو رقیہ خانم کی بگڑتی طبیعت کو دیکھتے پہلے ہی لرزتی کھڑی تھی۔ حیدر خان کی گرد پر وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ خان میں آپ کے حکم کے مطابق مورے کی ہر بات مان رہی ہوں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ٹھیک نہیں ہے، مجھے صبح سے چکر آ رہے تھے۔ میں نے اوزگل سے اتنا کہا میں کپڑے کل دھو لوں گی۔ خان اور باہر بارش بھی تو ہو رہی ہے، میں اس لیے منع کیا۔ خان یہ انکار میں نے اوزگل کو کیا تھا، مورے کو نہیں کیا۔ میں ابھی سارے کپڑے دھو لیتی ہوں۔ فرشتے کی بات پر ارحام نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ان کی حویلی میں یہ ساری کام ملازمائیں کرتی تھی۔ حیدر خان بھی ان کے ہم پلہ تھا، بڑے بڑے ہوٹلوں، زمینوں، جائیداد کا مالک۔ حیدر خان کی بیوی یہاں ملازماؤں والے کام کر رہی تھی۔ حیدر ہم کو پانی پلاؤ، رقیہ خانم نے گہری سانس لیتے پر مشکل کہا تھا۔ حیدر خان نے جلدی سے ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر گلاس رقیہ خانم کے لبوں سے لگایا۔ فرشتے رقیہ خانم کی طبیعت کی خرابی کے خوف سے آنکھوں میں آنسو روکے اسٹل کھڑی تھی۔ حیدر خان کا سرخ تند و تیز چہرہ بتا رہا تھا وہ شدید تیش و اشتعال میں ہے۔ فرشتے مورے سے معافی مانگو، حیدر خان نے سر لہجے میں حکم دیا۔ جی خان، جیسے آپ کہیں۔ فرشتے اپنے آنسو صاف کرتے جلدی سے رقیہ خانم کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ رقیہ خانم کے قدموں میں گرتی ارحام خان زادہ نے اسے کندھوں سے تھام کر اسے رقیہ خانم کے قدموں میں جھکنے سے روکا تھا۔ فرشتے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ارحام خان زادہ کی آواز میں بے یقینی تھی۔ فرشتے سسک کر رہ گئی تھی۔ لالا میں خان کے بغیر، اس سے آگے وہ بول ہی نہ سکی تھی۔ ارحام نے فرشتے کے لرزتے وجود کو دوبارہ سے اپنے بازوؤں کے حلقے میں بھرا تھا۔ وہ جیسے زمین بوس ہونے کو تیار تھی، وہ مشکل ہی اپنے بمشکل ہی اپنی قدموں پر کھڑی تھی۔ اس کا وجود پگھلے ہوئے کندن کی مانی جیسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بدن تپ رہا تھا۔ ارحام خان زادہ نے مٹھی بھیجتے حیدر خان کو سرخ آنکھوں سے گھورا، جو اسمارٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اسے فرشتے کی حالت نظر نہیں آ رہی تھی، یا وہ پھر دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ حیدر، اس لڑکی کو ہمارا نظروں سے دور کر دو، اس کو بولو یہاں سے جائے، ورنہ ہم سچ میں کچھ کر لے گا۔ یہ ہے تمہارا پسند؟
ہم نے تمہارا خاطر اس کا بانجھ ہونا برداشت کیا، اس کا طلاق یافتہ ہونا بھی۔ اگر ہم ٹھیک تھا، یہ تمہارا قابل نہیں ہے۔ رقیہ خانم گہری سانس لیتے پھنکا رہی تھی۔ حیدر خان، تمہاری نظروں کے سامنے فرشتے سے یہ سلوک ہو رہا ہے، اسے بانجھ طلاق یافتہ ہونے کا تانا دیا جا رہا ہے، تم خاموش کھڑے سن رہے ہو۔ ارحام کی آواز میں گرج نمایاں تھی، وہ فرشتے کے لیے لفظ بانجھ نہیں سن سکا تھا، اس کا ضبط کا دھارا چھوٹا تھا۔ حیدر خان نے لب بھینچے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، مگر اس نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ حیدر، اس لڑکی کو ہمارا نظروں کے سامنے دور کر دو، اس کا بھائی کو بولو یہاں سے اسے لے جائے۔ رقیہ خانم ایک بار پھر سے پھنکا رہی تھی۔ حیدر خان کی خاموشی انہیں چبھی تھی، ارحام خانزادہ کی گرج پر بھی۔ حیدر خان نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، ورنہ حیدر خان ان کے علاوہ کسی کی اونچی کی آواز برداشت نہیں کرتی، یہاں تک کہ حاکم خان کا بھی وہ لحاظ نہیں کرتا تھا۔ خان، رقیہ خانم کی بات پر فرشتے نے اسے لرزتے لبوں سے پکارا، جو لب بھینچے سپاٹ بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میری بہن میرے ساتھ جائے گی، میں اسے اب یہاں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے سرد انداز میں اپنا فیصلہ فرشتے یہاں سے کسی قیمت پر نہیں جائے گی، بیوی ہے فرشتے میری عورت، تم اسے کسی قیمت پر یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ فرشتے اندر جاؤ۔ حیدر خان کی بھاری آواز گونجی۔ جی خان۔ فرشتے نے جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ حیدر، یہ لڑکی اگر ادھر رکے گا تو تمہارے کمرے میں نہیں جائے گا، وہ کمرہ اب سے اوزگل کا ہے۔ رقیہ خانم فرشتے کو کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر بلبلا گئی تھی۔ حیدر خان کا فرشتے کو کمرے میں جانے کا حکم دینا رقیہ خانم کو جلتے توے پر بٹھا گیا تھا۔ اوزگل! ارحام نے ناسمجھی سے اوزگل کو دیکھتے حیدر خان کو دیکھا، جو لب بھینچے کھڑا تھا۔ مورے، وہ کمرہ فرشتے کا رہنے دے، حویلی میں اور بھی کمرے ہیں، اوزگل کو ان میں سے کوئی کمرہ دے دیں۔ حیدر خان نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں حیدر، فیصلہ آج اور ابھی ہوگا۔ اوزگل تمہارا بچوں کا ماں بنے گا، اس لیے اس کا مقام بھی زیادہ ہوگا۔ فرشتے حویلی کا کوئی بھی کمرہ لے لے۔ رقیہ خانم سرد مہری سے صفاقی سے بولی۔ ٹھیک ہے مورے، میں اور کوئی کمرہ لے لیتی ہوں، میں ابھی اپنا سامان نکال دیتی ہوں۔ فرشتے نے جلدی سے کہا۔ حیدر، تم نے دوسری شادی کر لی ہے؟ ارحام کی آواز زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ اگر ہمارا حیدر کا نکاح ہے اوزگل کے ساتھ اسی ہفتہ؟ رقیہ خانم کی بات پر ارحام نے فرشتے کو دیکھا، جو اسے دیکھتے نظریں چرا گئی تھی۔ حیدر، تم دوسری شادی کر رہے ہو؟ میں یہ سن کر شوق نہیں ہوا۔ تم دوسری شادی کر رہے ہو؟ کوئی مرد اپنی بات اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے۔ اگر میں دوسری شادی پر کوئی بات کروں گا تو بات حق پر آ جائے گی۔ شاید اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا تمہارا جائز حق ہے۔ تم تو دوسری شادی سے پہلے ہی رشتوں میں توازن برقرار نہیں رکھ پا رہے، تمہارے سامنے ہی تمہاری بیوی سے یہ سلوک ہو رہا ہے، تم خاموش ہو، کیوں خاموش ہو؟
माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, बीवी तो बिल्कुल नहीं ले सकती, मगर बीवी की एक अलग जगह होती है, वो हैसियत एक मर्द को बरकरार रखनी पड़ती है। फरिश्ते यहाँ नौकरों की तरह काम करती है, मैं इसके बारे में भी सवाल नहीं करूँगा। वो बहू है इस हवेली की, तुम जैसे रखोगे वो रह लेगी, मगर वो ऐसे ताने सुनते यहाँ पर कैसे रहेगी जिसमें इसका कोई कसूर। फरिश्ते माँ नहीं बन सकती, इस हकीकत से तुम बाखबर थे। आज तुम खामोश क्यों हो? अरहम खानजादा ने हैदर खान के मुकाबिलाते सवाल दागे। मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं रखते। हमारे घर के मामलात में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारा लिहाज सिर्फ रिश्ते की वजह से कर रहा हूँ, वरना हमारी हवेली के जनान खाने में कदम रखने की किसी गैर को इजाज़त नहीं है। तुम्हें यहाँ कदम रखने की इजाज़त देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हैदर खान ने रहाम खानजादा को घूरते एक लफ्ज़ चबाया था। जाऊंगा तो मैं सही, मगर अपनी बहन को साथ लेकर जाऊंगा, किसी कीमत पर उसे अब यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। खाम खानजादा ने भी जवाबन लफ्ज़ चबाए थे। लाला, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं खान के बगैर नहीं रह सकती। फरिश्ते ने नम आवाज़ में हैदर खान को देखते जल्दी से कहा था। तुम कहीं नहीं जाओगी फरिश्ते। हैदर खान मर तो सकता है, मगर अपनी इज्जत को किसी गैर बाहर की लड़की के पीछे नहीं छोड़ सकता। हैदर खान ने अरहाम खानजादा को देखते तंजिया कहा था। हैदर खान के तन पर अरहाम का रंग सुर्ख हुआ था और उसकुल का रंग भी तहीनों खजालत से सुर्ख पड़ा था। रुकिया खानम का रंग मजीद सुर्ख हुआ था। हैदर खान साफ लफ्ज़ों में जता चुका था वो फरिश्ते को कभी नहीं छोड़ेगा, और उसकुल को भी वो गैर लड़की कह चुका था। उन्होंने जो फैसला करना था अभी करना था। उन्होंने फरिश्ते जैसी नहुसत से अपनी हवेली को पाक करना ही था। वो फरिश्ते के बांझपन का साया उस गुल पर पड़ने नहीं देना चाहती थी। हैदर फरिश्ते यहाँ नहीं रहेगी, किसी कीमत पर यहाँ नहीं रहेगी। उसका भाई इसे यहाँ से लेकर जाना चाहता है तो शौक से लेकर जाए। हमको लगता है जब तक हमारा और रोज़गुल का शादी नहीं हो जाता। इधर से चले जाना ही बेहतर है। रुकिया खानम ने सपाट अंदाज में अपना फैसला सुनाया। मोरे आपका हुक्म मानते मैं ये शादी कर रहा हूँ, अगर फरिश्ते को मैं यहाँ से किसी सूरत नहीं जाने दूंगा, और मेरे कमरे पर भी सिर्फ फरिश्ते का हक होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। हैदर की सर्द अटल आवाज़ गूंजी थी। रुकिया खानम ने बेयकीनी से हैदर खान को देखा था। उन्हें पूरा यकीन था हैदर अब इनके किसी फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा। फरिश्ते को तलाक भी दे देगा, मगर हैदर खान तो फरिश्ते को अपने कमरे से भी नहीं निकाल रहा था। रुकिया जैसी सख्त अनाप्रस्त इंसान तो गुस्से से पागल हो गई थी। उनका बीपी फौरन से शूट कर गया था। उन्होंने गहरे सांस लेते फरिश्ते को देखा जो भीगी आंखों से लरसते हुए हैदर खान को देख रही थी। हैदर खान भी अब उसे ही देख रहा था। चेहरा सरसपाट था, आंखों भी सुर्ख थी, मगर निगाहों में फरिश्ते के लिए गर्मी थी। हैदर खान की आंखों में फरिश्ते के लिए शदीद मोहब्बत देख चुकी थी। वो बड़बड़ चली थी। हैदर, ये हमारा हुक्म है, फरिश्ते इस हवेली में नहीं रहेगा। रुकिया खानम ने गुस्से से कहा। मोरे, मैंने क्या कहा है आपसे? हैदर खान के लफ्ज़ मुंह ही में थे कि रुकिया खानम सीने पर हाथ रखकर सीना मसलते हुए सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी थी।
حیدر خان ان کی طرف بڑھا تھا۔ دور رہو حیدر، فیصلہ کرو، تمہارا بیوی یا ہم؟ رقیہ خانم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ مورے، یہ کون سی ضد ہے؟ جب میں کہہ چکا ہوں میں اوزگل سے شادی کروں گا تو پھر فرشتے کو یہاں سے کیوں بھیجنا چاہتی ہیں؟ حیدر خان بے بسی سے کہتے جھنجھلایا تھا۔ ہمارا حکم ہے، یہ یہاں نہیں رہے گی جب تک اوزگل اور تمہارا نکاح نہ ہو جائے۔ رقیہ خانم نے سوات لہجے میں مشکل کہا تھا، ان کی سانسیں جیسے اکھڑ رہی۔ خان لب بھیجے خاموش کھڑا سرخ آنکھوں سے رقیہ خانم کو دیکھ رہا تھا، حیدر خان جس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی واضح تھی۔ خالہ، یہ دوائی لے لیں۔ اوزگل دوائی اور پانی کا گلاس لے کر رقیہ خانم کی طرف بڑھی، جسے رقیہ خانم نے پانی کا گلاس پکڑتے زمین پر دے مارا تھا۔ حیدر خان بے بسی سے رقیہ خانم کو بے بسی سے دیکھتے اپنی گنی بیڈ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ چلو فرشتے یہاں سے۔ رحم خان نے حیدر خان کو خاموش دیکھتے فرشتے کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں بھرا۔ خان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فرشتے نے بھیگی آنکھوں سے رحم کو دیکھا تھا۔ چلو یہاں سے۔ رحم خان زادہ نے حیدر خان کو گھورتے سرد لہجے میں بولا۔ خان، فرشتے نے روتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ حیدر نے لب بھیجتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ چلو فرشتے۔ فرشتے کو حیدر خان کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے پکڑ ارحام اب کی بار دھاڑا تھا۔ فرشتے ارحام کے سال میں لرز اٹھی تھی۔ ارحام اسے بازو کے حلقے میں لیے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ خان، فرشتے نے پھر سے سسکی لیتے اسے پکارا تھا۔ ارحام خان زادہ نے اب کی بار اسے سرخ آنکھوں سے گھورا تھا۔ فرشتے ارحام کی سرد سرخ نظر پر نظریں جھکا گئی تھی۔ خان میں داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ داخلی دروازے پر رکتے اس نے پلٹ کر ایک پھر سے حیدر خان کو دیکھا تھا۔ حیدر خان جو نچلا لب دانتوں میں دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پیار ہم نے کیا، پیار تم نے کیا۔ فرشتے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اب رخ پلٹ گیا تھا۔ فرشتے ارحام کی باہوں میں سمائے اس کے سینے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارحام نے اپنا حصار اس کے گرد اور مضبوط کیا تھا، اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے وہ داخلی دروازہ عبور کر گیا۔ حیدر خان نے ایک نظر رقیہ خانم کو دیکھا جو گہری سانس لیتے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں مودے ہوئی تھی۔ اوزگل، مورے کو دوائی دو۔ حیدر خان سرد انداز میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔